terror terrorism in India. This is the third topic in internal security, and it was started yesterday. This is the second lecture related to it. Today it's 5th of December 2023. So we are steadily moving towards the end of this year. Before I start, let me offer my deep tributes to the people who are facing immense loss in the peninsular India. The cyclone Michong has hit the eastern coast of India, particularly the state of Andhra Pradesh and northern part of Tamil Nadu. There's a massive loss happening over there. The footage coming right from the Chennai International Airport, they are really disturbing. Operations have been suspended, and so far immense loss both of property, private property as well as public property has been reported. We do not know the number of injured people or the casualties. Those numbers will also come in our knowledge very soon. But so far, it is really disheartening to observe such calamities. There is a thought in geography which is known as determinism. Determinism says that the environment or this nature is an active agent while human is a passive agent. This environment controls our activities. We are actually controlled by the environment or this nature. Such events like earthquakes, tsunamis, cyclones, these events confirms this thought process of determinism. We are really controlled by the nature itself. All right, coming back to our topic, in the previous lecture we had written about the modus operandi of the ISI, which is Inter-Services Intelligence. It is the intelligence arm of the Pakistan's army, and it is the agency which is solely responsible for the collection of intelligence inputs, data, both from international platforms as well as from the internal territory or the domestic territory of Pakistan. So ISI is the sole agency. In our Indian case, we have different agencies. One is the Intelligence Bureau and second is the RAW. All right. In our country, the financial or the economic related intelligence is usually collected by the Financial Intelligence Unit. That's a different intelligence team. Then there is the Defense Intelligence Agency, which provides very sensitive intelligence inputs related to the army and strategic outposts. So Defense Intelligence is another agency. Then there is a Railway Intelligence Agency. In our country, there are so many intelligence agencies, bureaus, and they collectively provide information to the central government, and the government acts according to that only. So today's first topic will be the proxy war. Proxy war is a phenomenon in which the government sponsors a terror outfit for creating catastrophe in the enemy country or enemy territory. In present scenario, we can take an example of Hamas, which is clearly sponsored by the government of Iran. So government of Iran has indeed launched a proxy war against Iran has launched a proxy war against Israel. Right? Proxy war. Like Pakistan has launched a proxy war against India way back in the 1971, and it is still continuing, because that was the year when India had defeated Pakistan, and consequently a new country, Bangladesh, came into existence, and that was a serious wound against Pakistan. Pakistan had taken it. Okay, ठीक है. दोनों चारों ठीक है. So Pakistan had taken that
very seriously. It was a clear insult of Pakistan that the country has been divided into two parts. A new country has emerged. So from that day onwards, a proxy war is there against India, sponsored by the government of Pakistan or the Pakistani army particularly. Okay, start writing in the proxy war. Proxy war is a type of hostile activities. अच्छा, प्रीवियस लेक्चर में अभी तक किसी को कोई प्रॉब्लम रही है तो बता देंगे, इंट्रोडक्टरी पार्ट में या खालिस्तान में, या कल वाला टेररिज्म का जो था। जिनका खालिस्तान वाला टॉपिक छूटा हुआ है वो उसको एज सून एज पॉसिबल कंप्लीट करने का प्रयास करें। सारे कामों को छोड़ो, पहले उसको कर लो, क्योंकि हम जो क्लास अटेंड कर रहे हैं, जो टॉपिक हम कर रहे हैं, एटलीस्ट वो तो पूरा रहे। पता चला कोई भी पूरा नहीं है, क्लास हमने सारी अटेंड की हुई है, ऐसा चलता नहीं है, ठीक है। कुछ जब आपके टॉपिक्स कंप्लीट होने लगते हैं ना, तो देखो आईएएस की लाइन हो या किसी भी कंपेटिटिव एग्जाम की, तो अपने आप एक कॉन्फिडेंस आने लगता है कि हाँ मेरा ये भी एक चेकलिस्ट जैसी बना लो कि हम ट्रैकिंग ट्रिप पर जा रहे हैं और हमारे पास एक चेकलिस्ट है। हाँ, हमने चार्जर भी रख लिया, हमने नाइट वेयर्स भी रख लिए, हमने शूज भी रख लिए, तो हम कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि हम भाई ये ट्रिप के लिए बिल्कुल तैयार हैं, कमर कस के रेडी हैं। वही वाला हिसाब यहाँ पे रहता है। एक सब्जेक्ट्स की आपकी चेकलिस्ट जैसी होनी चाहिए, टिक लगता रहे। Proxy war is a type of hostile activities in international affairs, by which enemy state uses, proxy war is a type of hostile activity in international affairs, by which enemy state uses non-state actors are those actors which are not a part of government. वो गैर सरकारी हैं, वो कोई आतंकी संगठन है या वो कोई गुंडे मवाली हैं, उनका इस्तेमाल करना। नॉन स्टेट एक्टर्स और इनहेरेंटली सबवर्सिव एंटिटीज, subversive, subversive entities in the affected state to weaken or harm the state, comma, potentially to achieve some objectives, full stop. देखिए, पाकिस्तान पॉलिसी ऑफ ब्लीडिंग इंडिया थ्रू 1000 cuts, पाकिस्तान पॉलिसी ऑफ ब्लीडिंग इंडिया थ्रू 1000 cuts, is a lively example of proxy war. Bleeding India through 1000 cuts is a lively example of proxy war. Stop. A lively example of proxy war. जीवंत उदाहरण है ये प्रॉक्सी वॉर का। प्रॉक्सी वॉर मतलब छद्म युद्ध बोलते हैं इसको, छद्म युद्ध। ये युद्ध नहीं है, युद्ध जैसा लग रहा है मगर ये है नकली, ठीक है, छद्म युद्ध। लिखिए, इसको जरा साइलेंट करेंगे। नो डायरेक्ट इंडल्जेंस इन टेररिज्म, नो डायरेक्ट इंडल्जेंस इन टेररिज्म, नो डायरेक्ट इंडल्जेंस इन टेररिज्म gives Pakistan an opportunity of plausible deniability, an opportunity of plausible deniability। हमने तो एक यही नहीं, हमारे ऊपर कैसा आरोप लगा दे रहे हैं, ये जो मरे हैं वो आतंकवादी हैं, वो है ही नहीं, उसके सेना के पार्ट है ही नहीं,
ठीक है, मगर वही है ना, चोरी या झूठ छुपाए नहीं छुपता। जब वो जो मरते हैं तो उनके पास सामान सारा बरामद होता है, वो पाकिस्तान का होता है। जो सिम कार्ड्स हैं वो सारे पाकिस्तान के हैं, जो शूज हैं वो पाकिस्तान के हैं, जो खाना जो अपने साथ लेकर के आए थे, बिस्किट लाए थे या जो भी कुछ लाए थे, वो सारी कंपनीज पाकिस्तान की हैं। फिर कैसे हो गया भाई? भारत में तो पाकिस्तानी सामान मिलता नहीं है, तो हम तो अलग से, और हम इतनी मेहनत करेंगे भी नहीं कि हम पहले पाकिस्तान से ग्रोसरी खरीदें और उसके बाद अपने आतंकियों को दें, जस्ट टू डिफेम पाकिस्तान। इतना टाइम किसी के पास नहीं है इंडिया में ये सब काम करने के लिए, ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है कि वो छुपता तो नहीं है, मगर फिर ये होता है बहुत ही बुरे हश्र हो जाते हैं उन लोगों के, क्योंकि वो घर से निकले थे, अब उनको पाकिस्तान वापस लेगा नहीं। जो मर गए हैं वो डेड बॉडी लेने से इनकार कर देते हैं, फिर वो इंडिया के सिर पे पड़ते हैं, फिर उनका वो जो उनको दफनाओ या जो भी कुछ करो, अंतिम संस्कार करो उनका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालिए, हिंटरलैंड टेररिज्म। हिंटरलैंड, हिंटरलैंड, HINTER, हिंटरलैंड, हिंटरलैंड टेररिज्म। जैसे मैंने आपको बोला कि रामपुर में CRPF कैंप पर हमला हो गया था, ठीक है, या अजमेर में ब्लास्ट हो गया, या वाराणसी में संकट मोचन मंदिर में ब्लास्ट हो गया, ये इस तरीके के, तो इसको हम बोलते हैं हिंटरलैंड टेररिज्म। या मालेगांव में बम धमाका हो गया, उसमें तो बहुत सारे लोगों के नाम आए थे, बाद में फिर वो पूरी थ्योरी झूठी निकली, ठीक है, तो वो सबको फिर छोड़ा गया। मतलब बहुत कुछ हुआ है, हर बात बोली नहीं जा सकती है। आप अगर वो बहुत अच्छी कोई बुक्स पढ़ते हैं तो आप, मतलब नॉन फिक्शन बुक्स में इन सब चीजों का उल्लेख मिलता है कि किस तरीके से सरकार ने अपने अधिकारी से कहा। बल्कि जो इस समय में जो ऊर्जा मंत्री हैं, जो इस समय जो पावर मिनिस्टर हैं, RK सिंह, एट दैट टाइम ही हैपेंड टू बी द होम सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। होम सेक्रेटरी के नीचे सारा कुछ मैटर होता है, बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह सब होम सेक्रेटरी को ही देखना होता है। उन्होंने कहा मुझे ऑर्डर दिया गया था कि ये इन लोगों का नाम बदल करके कुछ ऐसा नाम कर दो जो बेसिकली, ठीक है, दूसरी कम्युनिटी से थे, और उनका नाम जो है वो हिंदू कर दो, तो ऐसा लगेगा कि ये हिंदू टेररिज्म है। उन्होंने कहा सर मैं कैसे कर दूंगा, ये नाम कैसे बदल दूंगा मैं इसमें लिखकर, मेरी तो नौकरी पे बात आ जाएगी। ये तो उसमें करो। बाद में फिर वो प्रूव हुआ कि, तो अगर वो कर भी देते तो सच में उनके ऊपर शायद एक्शन हो जाता। देखो गवर्नमेंट में तो फिर आपका कोई साथ देता नहीं है। वंस यू आर कॉट, यू आर कॉट, एंड सब्सिक्वेंटली यू विल बी सस्पेंडेड, मे बी यू विल बी पनिश्ड और टर्मिनेटेड फ्रॉम द जॉब। तो अपनी नौकरी को जितना साफ रख सकते हैं उतना रखना चाहिए। तो होम सेक्रेटरी थे, उनकी सब बातें हैं, चलो अब उसको क्या बोला जाए। मगर नाम, जैसे एक इशरत जहां का एनकाउंटर हुआ था, इशरत जहां, गुजरात की बात है ये, तो वो उसको भेजा ही गया था इशरत जहान को कि आप जो है गुजरात चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को खत्म कर दो, और उसको टाइम रहते पकड़ लिया गया, उसको मार दिया गया, एलिमिनेट कर दिया। उसके साथ और भी कुछ लोग थे सड़क पर, वो कह दिया कि ये तो फेक एनकाउंटर है, ये तो इसको जबरदस्ती मार दिया गया। बाद में जाके प्रूव हुआ कि वो तो सच में आतंकवादी थी, लड़की मारने आई थी। लड़कियों पर यूजुअली शक नहीं होता है, इसलिए ऐसे काम में उनको आगे कर दो। जैसे श्री राजीव गांधी की हत्या हुई थी, तो उसमें भी जो लेडी ने बॉम्ब बेल्ट लगाई थी वो भी लड़की थी, उन्हें मार दिया, खत्म कर दिया। और क्या करने गई थी? राजीव जी के पैर छूने गई थी। उस समय इलेक्शन होने वाले थे और राजीव जी प्रधानमंत्री नहीं थे, वो इस्तीफा दे चुके थे, क्योंकि बोफोर्स स्कैंडल सामने आ गया था। होवित्जर तोप का खरीद में घोटाला हुआ था डिफेंस डील में, उसमें नाम आ गया था, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। देश में लोकसभा के चुनाव होने वाले थे, वो जगह जगह रैली कर रहे थे, वो जिस समय वो साउथ में वहां पे गए, बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, खत्म, कुछ भी नहीं मिला। जो राजीव जी की जो डेड बॉडी वगैरह की जो फोटो दिखाई जाती है ना, वो कुछ भी नहीं था उसके नीचे, कुछ नहीं था। वो सब, उसके नीचे कुशंस थे, पिलोज थे, वो सब था। उसके ऊपर झंडा लगा दिया गया था, क्योंकि कुछ तो दिखाना ही पड़ेगा। कुछ नहीं मिला। मुझे अभी भी ध्यान है, एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था आंध्र प्रदेश, तब पहले अनडिवाइडेड आंध्र प्रदेश, अभी तो तेलंगाना बन गया। देयर वाज अ चीफ मिनिस्टर, YS रेड्डी, YS राजशेखर रेड्डी, द फादर ऑफ इनकम्बेंट चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश। YS जगन मोहन रेड्डी इज द incumbent chief minister of Andhra. His father had died in a helicopter crash. His dead body was in a miserable condition. कोई देख ले तो उसके तो हालत खराब हो जाए। वो तो कभी ये सब जो, अब सोचे हेलीकॉप्टर क्रैश में जो उनकी व्यक्ति की हालत हुई है, जनरल रावत की,
जो स्थिति हुई थी डेड बॉडी की, आप समझ लें जिसके यहाँ बम फटा है जिसके सामने, बिल्कुल वो लेडी पैर में झुक रही है और बम फट गया, तो समझिए उसको क्या हुआ होगा, उसकी हालत क्या हुई होगी। मगर अफसोस है कि वो छोड़ दिया गया उसको, वो लेडी, वो जो उसमें जो कॉन्स्पिरेसी में थे, अभी उन लोगों को छोड़ दिया गया है थोड़े टाइम पहले। चलो कोई बात नहीं, लिखो, एवरीथिंग इज पॉलिटिक्स नो। hinterland terrorism is the form of terrorism that is spread all across the hinterland. Hinterland terrorism is a form of terrorism that is spread all across the hinterland or non-border areas, hinterland or non-border areas of the country. That is spread all across the hinterland or non-border areas of the country. It can be indigenous religious extremism. It can be indigenous religious extremism, indigenous religious extremism, such as radical Islamist terrorism, such as radical Islamist terrorism, indigenous religious extremism, indigenous religious extremism, such as radical Islamist terrorism. हम एक बार यहाँ पे क्लियर कर दूं कि ये जो रिलीजन का अगर कोई नाम आ भी रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी की सेंटिमेंट्स हर्ट कर रहे हैं। इट्स जस्ट दैट वो जो 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 वोकैबुलरी या जो शब्द इस्तेमाल किए गए इन दी बुक्स वही एज इट इज दिए जा रहे हैं, इसमें कोई अपने मन से कोई नाम जोड़ा नहीं जा रहा है, ठीक है। तो किसी के रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट करना यहाँ पर उद्देश्य नहीं है। एक्सट्रीमिज्म सच एज रेडिकल इस्लामिस्ट टेररिज्म, कॉमा, terrorism by fringe Hindutva groups, terrorism by fringe Hindutva groups, terrorism by fringe 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 Hindutva groups, or by staunch supporters of Khalistan, or by staunch supporters of Khalistan. staunch होते हैं बिल्कुल पक्के, दृढ़, कट्टर, वेहिमेंट, कुछ भी बोल लो ना। नेक्स्ट पैराग्राफ लिखेंगे, इन इंडिया, in India, hinterland terrorism is sponsored by Pakistan. In India, hinterland terrorism is sponsored by Pakistan. Full stop. लिखिए, in due course of time, in due course of time, Pakistan based terror outfits, in due course of time, Pakistan based terror outfits made Kashmir their laboratory of terror activities, made Kashmir their laboratory of terror activities. Full stop. With the help of ISI, with the help of ISI, ISI stands for इंटर सर्विस इंटेलिजेंस, ठीक है। तीनों इंटर सर्विस मतलब सेना, नौसेना, वायुसेना, ठीक है, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, तीनों इंटर सर्विस इंटेलिजेंस, वो तीनों को इंटेलिजेंस इकट्ठा करके देते हैं, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ ISI, आफ्ताब अंसारी एंड आसिफ रजा खान, आफ्ताब अंसारी एंड आसिफ रजा खान launched jihad against India. Asif Raza Khan launched jihad against India. Next paragraph. After the demolition of Babri Masjid in Ayodhya,
after the demolition of Babri Masjid in Ayodhya in 1992, after the demolition of Babri Masjid in Ayodhya in 1992, the Muslim sentiments were hurt. इस पे पीवी नरसिम्हा राव की बहुत अच्छी बुक है, अयोध्या का जो पूरा जो प्रकरण हुआ था, जो केस था, क्योंकि पीवी नरसिम्हा राव वाज द प्राइम मिनिस्टर बैक देन। उन्होंने वो पूरा लिखा है कि मैंने यूपी में फोन किया था, क्या क्या उस टाइम में हो रहा था सारी बातें उन्होंने लिखी हैं। और आपको ये जानकर के बड़ा आश्चर्य होगा कि अपने गढ़वाल यूनिवर्सिटी जो है, इसके वाइस चांसलर थे, इन्होंने चांसलर थे, कौन थे, तो वो जो उस टाइम में जो यूपी के चीफ सेक्रेटरी थे, जिस समय बाबरी मस्जिद डिमोलिशन हुआ था, उस टाइम यूपी के चीफ सेक्रेटरी थे, वो मेरी ग्रेजुएशन के टाइम में गढ़वाल यूनिवर्सिटी के चांसलर थे। तो उनका नाम भी है वहां पे लिखा हुआ, डीएवी में उनका नाम लिखा हुआ है। तो एक कोइंसिडेंस था। और उन्होंने भी बहुत सारी बातें बोली हैं कि नारायण करके उनका कुछ नाम था, मैं नाम इस समय भूल रहा हूँ। और कल्याण सिंह जो अब नहीं रहे, कल्याण सिंह चीफ मिनिस्टर थे। बाबरी मस्जिद 6 दिसंबर को ढाई गई थी। तो वो दिन जो था वो बहुत मतलब बड़े समय तक कर्फ्यू लगा रहा, पूरे देश में बहुत ज्यादा हालत खराब हो गई। तो दाऊद की बहन मुंबई में रहती थी, जिनका नाम था हसीना पारकर, ओहो, वो ने फोन लगाया अपने भैया को कि तुम्हारा खून नहीं खौलता है क्या। और खून खौला। दुनिया के पहले सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट मुंबई में हुए 1993 में। दुनिया ने इससे पहले कभी नहीं देखा था कि सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट भी कभी होता होगा, कोई ऐसा चीज कि एक के बाद एक, एक के बाद एक फट रहा है बॉम्ब। कहीं साइकिल पर बॉम्ब फट रहा है, कहीं कुकर में बॉम्ब फट रहा है, कहीं जो लोकल ट्रेन में बॉम्ब फट रहा है। जगह जगह बम ब्लास्ट हुए। उसमें शायद 11 या 13 जगह बम ब्लास्ट हुआ था। और पूरी मुंबई को उन्हें शांत करके रख दिया था उस समय। दाऊद इब्राहिम ने वो हरकत की थी। और इस देश में ऐसे बहुत ऊंचे ऊंचे लोग हैं, बॉलीवुड में भी और सब में, जो दुबई में, कराची में, मुशायरों में दाऊद इब्राहिम के साथ जाके बैठते थे और फंक्शंस अटेंड करते थे। वो उसी मुंबई से वो लोग जाते थे दुबई फंक्शन अटेंड करने, जो उनकी कर्म भूमि है, जहां दाऊद ने बम ब्लास्ट किए थे। ठीक है। और आज वो लोग जब उनका बुढ़ापा आ गया है और शरीर थकने लगा है, तो अब वो राष्ट्रभक्ति का ज्ञान देते हैं कि राष्ट्रभक्ति कैसे होती है। दाऊद के साथ मुशायरा सुनने वाले वो दूसरों को बता रहे हैं। और मैं नाम नहीं लूंगा किसी का भी, मगर बहुत ऊंचे ऊंचे लोग हैं जिन्होंने बहुत सम्मान हासिल किया है। इवन पद्म अवार्ड भी उनको मिल चुके हैं। वो भी दाऊद के साथ वहां पे मुशायरे सुन रहे थे। और दाऊद की जो बेटी है, वो पाकिस्तान के क्रिकेट कैप्टन क्या उनकी बहू बन करके गई थी। तो दाऊद के और पाकिस्तान के वो जो क्रिकेट कैप्टन थे जावेद मियांदाद, वो समधी हैं दोनों। और पाकिस्तान कहता है कि हमारे यहाँ टेररिज्म नहीं है। तो दाऊद तो तुम्हारे कप्तान का समधी है। तुम्हारे यहाँ क्रिकेटर भी जो है वो उन आतंकवादियों के रिश्ते कर रहे हैं, और तुम कह रहे हो कि हमारे यहाँ टेररिज्म नहीं है। भारत में तो ऐसा रिश्ता हो जाए तो पूरी सबको उठा करके बंद कर दिया जाएगा, जेल में डाल दिया जाएगा। शादी तो खैर होने ही नहीं देगी यहाँ की पुलिस, और बाकी पूरा खानदान उनका जेल चला जाएगा। और पाकिस्तान में सब आराम से रह रहे हैं। जावेद मियांदाद सम्मान के पात्र हैं पाकिस्तान में, दाऊद भी होंगे ही। और ओसामा कहाँ मारा गया था, तो वो भी एबटाबाद में मारा गया था, वो भी पाकिस्तान में ही आता है। मुसीबत तो ये है कि पाकिस्तान खुल के बोल नहीं पाता कि हमारे यहाँ ऐसा हो गया। अब पाकिस्तान यदि बोल दे कि एबटाबाद में आके ओसामा को मारा, इसका मतलब ओसामा तुम्हारे यहाँ था। या इंडिया ने अगर सर्जिकल स्ट्राइक कर दी, हमारे यहाँ आतंकी मार दिए, इसका मतलब आतंकी थे तुम्हारे यहाँ। भाई अगर मेरे यहाँ से गोल्ड चोरी हो गया, मैं कह दूं 40 किलो मेरे यहाँ गोल्ड था, तो पुलिस सबसे पहले ये तो पूछेगी कि चलो चोरी हुआ, ये तो दुख की बात है, 40 केजी गोल्ड आप पे कहाँ से आया, ये तो बताइए सर। तो एक तो चोरी की एफआईआर होगी, और एक होगी आय से अधिक संपत्ति का मामला। तो चोर और आप दोनों लोग आस पड़ोस वाली जेल में ही बंद किए जाएंगे। ये होता है, इसलिए पाकिस्तान ज्यादा बोलता नहीं। जब ज्यादा बड़े बड़े लोगों के डाके डलते हैं ना, तो वो
इसीलिए रिपोर्ट नहीं करा पाते हैं, क्योंकि जब वो बोलेंगे तो फिर तो सब बातें है ना, बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। और क्या क्या पुलिस पूछती है फिर, तो पुलिस अपनी तरीके से, उनकी तो ट्रेनिंग ही हुई है उसी काम को करने की। आप तो ट्रेंड नहीं है, आपसे 2 सवाल पूछेंगे और फिर तीसरा आएगा और आप उलझ जाएंगे, फिर पुलिस का डंडा आता है चौथे नंबर पे, सब इंसान बोल देता है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। देखिए, आफ्टर द डिमोलिशन ऑफ बाबरी मस्जिद इन अयोध्या in 1992, the Muslim sentiments were hurt. The Muslim sentiments were hurt, and after few months in March 1993, and after few months in March 1993, serial blasts took place in Mumbai. Serial blasts took place in Mumbai. Full stop. It was sponsored by D Company of Dawood Ibrahim. It was sponsored by D Company of Dawood Ibrahim. D Company of Dawood Ibrahim. दाऊद से जुड़ी हुई खबरें छापने वाले एक पत्रकार थे, उनका नाम था जेडे, ज्योतिर्मयी डे। बंगाली थे, ज्योतिर्मयी डे। वो बहुत छापते थे, उनसे सबने कहा था कि इतना वो मत करो, तो तुम तो पीछे ही लग गए उनके। और जेडे को एक दिन खत्म कर दिया गया मुंबई में, दिन दहाड़े मार दिया गया, जेडे खत्म। ठीक है। टी सीरीज के मालिक जो क्या नाम था, गुलशन कुमार जी, कितने मतलब घर घर तक कितने अच्छे भजन, ये हरिहरन वगैरह का सबका, हरिहरन, अनुराधा पौडवाल, अनूप जलोटा, इन सबको तो बना के गए वो। इन सबका जो आज जो इनकी जो शख्सियत है ना, वो सारा कुछ अगर जाता है श्रेय, एक तो उनकी अपनी कला, और दूसरे गुलशन कुमार साहब। गुलशन कुमार ने इन लोगों से जितने गाने रिकॉर्ड करवाए, भजन, अमृतवाणी और क्या क्या, वो सब। हनुमान चालीसा आज भी जो वो जो बहुत कॉमन वर्जन है हनुमान चालीसा का, हरिहरन ने गाया हुआ है। ठीक है। तो खत्म कर दिया गया उनको, उन्होंने बहुत अच्छा, उनसे शायद कुछ फिरौती वगैरह मांगी गई थी, खत्म हो गया। अच्छा, मुंबई की उस समय में वो हालत थी कि एक तो हमारे पास इंटरनेट नहीं थे, हमारे बॉर्डर्स इतने टाइट नहीं थे, और जो गवर्नमेंट थी वो भी उतनी टाइट नहीं थी। तो जो जो ऑफिसर्स थे वो अल्टीमेटली फिर पॉलिटिशियंस के नीचे ही होते हैं, क्योंकि मिनिस्टर की तो बात माननी पड़ेगी, और मिनिस्टर के उनसे बहुत अच्छे संबंध है। सब कुछ चल रहा है, बम्बई पूरी चल रही है। मुंबई में जो डॉन का ये जो राज जो खत्म हुआ है ना, ये सब ये हुआ है 90s में। फिर जो ऑफिसर्स आने शुरू हुए, फिर सरकार इस तरीके से भी थोड़े टाइट हुई। 1993 के बाद से फिर तो मुंबई में खाली होने लगा था मैटर। आर्म्स एक्ट के बहुत भारी मुकदमे भी हुए। ये सब हिंटरलैंड का जो मैटर है, जैसे संजय दत्त जी को जेल हुई थी, ठीक है, उनके पास एक ऐसे ऑटोमेटिक वेपन पाया गया था। अब उन्होंने ये कहा कि हम, मुझे नहीं पता था ऐसी घटना होने वाली है। मगर फिर बात ये होती है ना कि चलो ठीक है, हम मानते हैं घटना नहीं होने वाली, मगर इतना बड़ा हथियार किस लिए? ये कोई बच्चों के खेलने की चीज थोड़ी ना है, वो ऑटोमेटिक है, जिसके ट्रिगर आधा भी दबता है तो गोलियां निकलती हैं, और इकट्ठी निकलती हैं। वो ऐसे ऑटोमेटिक हथियार जो हैं, किसी सिविलियन की अलमारी में क्या कर रहे हैं? तो बहुत ही बेसिक सा सवाल है ये। चलो ठीक है, हम जानते हैं आपका मैलाफाइडे इंटेंशन नहीं था, मगर 93 के बम धमाके हुए, और आपका ऐसे लोगों से संपर्क है जो बम धमाकों में शामिल है, उसी टाइम की वो बंदूक थी, तो क्या किया जा सकता है? तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं पाकिस्तान से, या जिनका आना जाना रहा है। अब ठीक है, सबूत नहीं मिले, सबूत तो आरुषि तलवार को किसने मारा ये भी नहीं मिला, मगर इसका मतलब ये थोड़ी ना उसे किसी ने मारा नहीं था। सबूत ना मिलना और काम हुआ या नहीं हुआ है, वो दोनों बातें बिल्कुल अलग होती हैं, ये नहीं कहा जा सकता। अब हिरन को किसने मारा अगर हमें क्लियर नहीं हो पा रहा है, सोते हुए लोगों को फुटपाथ पे किसने को चल के मार डाला ये क्लियर नहीं हुआ, इसका मतलब क्या है? वो लोग मरे नहीं थे? मरे तो थे ही ना वो। अब किसने मारा वो नहीं हो पाया प्रूफ, उसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। उसके पीछे शायद एक कारण वेल्थ भी हो सकती है, इसलिए सबूत नहीं मिल पाया कि गरीब मर गया था। अगर वही गरीब की जगह पे 10 आईएएस अधिकारी होते तो क्या प्रूव नहीं होता कि उन्हें किसने मारा था? अगले ही दिन प्रूव कर देती पुलिस। अगर मिनिस्टर होते तो ये होता है ना। तो आप पे आपकी नेट वैल्यू कितनी है बाजार में, उससे तय होता है
बहुत सी बार कि आप किस लेवल तक जा सकते हैं। ठीक है, चलिए लिखिए, इट वॉज स्पॉन्सर्ड बाय डी कंपनी ऑफ दाऊद इब्राहिम। नेक्स्ट पैराग्राफ। वे बैक इन 1977, वे बैक इन 1977 स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया, कैपिटल में लिखेंगे स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया। ये नाम सुनिए, स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट, बच्चे हैं और आतंकी संगठन है। 77, 1977। ऐसे ही एक क्या नाम, जब मैंने खालिस्तान पढ़ाया तो उसमें था ऑल इंडिया सिख स्टूडेंट फेडरेशन, अमरीक सिंह वाला, वो भी सब स्टूडेंट थे, और वो कौन थे, आतंकवादी थे, AISSF वाले। ऐसे ये है, तो सब स्टूडेंट्स हैं। अब क्या कर रहे हो भैया, पढ़ाई करो ना, तुम उल्टे काम कर ही क्यों रहे हो फिर, स्टूडेंट होकर के भी ऐसे काम। वे बैक इन 1977 स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया, सिमी, SIMI, सिमी was formed. Simi had a view, Simi had a view, Simi के ऐसे विचार थे, that secularism, Simi had a view that secularism, democracy and nationalism, secularism, democracy and nationalism are against the principles of Islam, are against the principles of Islam. सिमी का ऐसा मानना था कि जो सर्वधर्म संभाव है, जो लोकतंत्र है और जो राष्ट्रवाद है, ये तीनों ही चीजें इस्लाम की मूल भावना के विरुद्ध हैं, उनके खिलाफ हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए सिमी ने हथियार उठा लिए थे कि हम इसको सेक्युलरिज्म खत्म करवा देंगे। देखिए, दे एडवोकेटेड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ खिलाफत, दे एडवोकेटेड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ खिलाफत, they advocated the establishment of khilafat, that is Islamic Caliphate, Islamic Caliphate। जैसे महात्मा गांधी के जीवन से जुड़ी हुई बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी ये है कि उन्होंने जिस समय नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चल रहा था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट मतलब असहयोग आंदोलन, जिसमें उन्होंने कहा था दैट वी विल नॉट कोऑपरेट विद द ब्रिटिश रेजिम एंड वी विल स्ट्राइव टू सीक फ्रीडम फ्रॉम द ब्रिटिश रूल। और उसी वक्त में खिलाफत मूवमेंट भी शुरू हो गया था, क्योंकि ओटोमन एम्पायर के जो खलीफ साहब थे उनको हटा करके, और ठीक है वो बहुत कुछ चल रहा था उस समय में। महात्मा गांधी यहाँ तक बोल गए कि इनका कॉज हमारे कॉज से ज्यादा बड़ा है, तो उससे थोड़ा लोगों को बुरा लगा था। उन्होंने कहा हम देश को अपना आजादी दिलाना चाह रहे हैं, हम अपनी जो है मरने मारने को तैयार हैं, तो आप ऐसी बात क्यों कर रहे हैं। हमारा जो कॉज है दैट इज एब्सोल्युटली पॉलिटिकल एंड नेशनलिस्टिक, whereas their cause is religious। इस्लामिक कैलिफेट वो एक, क्योंकि इस्लाम का एक हेड मान रहे हैं उनको, वो एक बहुत पायस सीट मानी गई है, तो उनका धर्म से जुड़ा हुआ विषय है। हमारा धर्म से जुड़ा विषय नहीं है, हमें हिंदुस्तान या इसलिए आजाद नहीं कराना था क्योंकि हमारा कुछ रिलीजियस इंटरेस्ट था, हमें तो उन गोरों से आजादी चाहिए थी ना, उनको भगाओ जो हमारे यूरोपियन मास्टर्स बने बैठे हैं। तो हमारा कॉज और उनका कॉज कोई छोटा बड़ा नहीं हो सकता है, या ये कह देना उनका कॉज हमसे ज्यादा बड़ा है, तो ये सेंटिमेंट हर्ट करने वाली बात है। मगर चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अब उन्होंने कहा तो कहा। दे एडवोकेटेड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ खिलाफत, दैट इज इस्लामिक कैलिफेट, एंड द नीड ऑफ जिहाद टू एस्टैब्लिश द सुप्रीमेसी ऑफ इस्लाम, एंड द नीड ऑफ जिहाद, जिहाद मतलब होता है होली वॉर, नीड ऑफ जिहाद टू एस्टैब्लिश द सुप्रीमेसी ऑफ इस्लाम। देखिए, in 2001 सिमी was banned, in 2001 सिमी was banned। अटल बिहारी वाजपेयी जी की उस समय में सरकार थी केंद्र में, और 2004 तक प्रधानमंत्री रहे थे। in 2001 सिमी was banned, full stop। its cadres were then moved on to, its cadres मतलब उसमें जो लोग काम करते थे उनके लिए, its cadres were then moved on to establish Indian Mujahideen, to establish Indian Mujahideen with the support of Lashkar-e-Taiba, with the support of Lashkar-e-Taiba, ए मतलब यहाँ पर आई लिखा जाता है, स्मॉल आई, लश्कर इंडियन मुजाहिदीन,
मैं स्पेलिंग लिख देता हूँ यहाँ पर, देख लेना। वैसे तो बोर्ड गंदा हो जाएगा ये नाम लिखने से। इंडियन मुजाहिदीन, देन लश्कर ए तैयबा, लश्कर ए तैयबा, दिख रहा है? हो गया। एंड हुजी बी, हुजी बी, यहाँ पे बी स्टैंड्स फॉर बांग्लादेश। हरकत उल जिहाद उल इस्लामी, इसका वैसे पूरा नाम रटने की कोई जरूरत नहीं, हुजी भी लिख लेना, हुजी बांग्लादेश लिख लो या हुजी भी लिख लो। देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ। इन 2001 आसिफ रजा खान वाज एलिमिनेटेड बाय गुजरात पुलिस। In 2001 Asif Raza Khan was eliminated by Gujarat police. आपको पता है इंटेलिजेंस ब्यूरो ने एसपीजी से साफ बोला कि जो इवन मिनिस्टर्स भी है ना, वो भी प्रधानमंत्री के नजदीक नहीं रहने चाहिए ज्यादा। प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो सिक्योरिटी है वो अब इस लेवल की है कि उनसे अननेसेसरली सारे मिनिस्टर्स भी नहीं मिल सकते हैं, जो कैबिनेट रैंक होल्ड कर रहे हैं वो भी नहीं उनसे मिल सकते हैं। तो दो चार फेसेस को छोड़ करके, जैसे डिफेंस मिनिस्टर है, फाइनेंस मिनिस्टर है, होम मिनिस्टर है, बीजेपी के नेशनल प्रेसिडेंट जेपी नड्डा हैं, इन लोगों को छोड़ करके वो जो बिल्कुल, क्योंकि वो एक ऐसे लोग हैं जिनको वो चलाना ही है, वरना प्रॉब्लम आ जाएगी ना, एक अकेले कैसे चलेंगे। उनको छोड़ करके बाकी कोई ज्यादा नजदीक नहीं आ सकता। एसपीजी ऐसे हाथ लगा के किनारे कर देती है। या किसी स्टेट का चीफ मिनिस्टर बहुत ज्यादा नजदीक नहीं आ सकता है। आप उनके पैरेलल ही नहीं चलेंगे और उनसे पीछे हट के चलना पड़ेगा, जिस समय वो चलते हैं तो पीछे कर दिया जाता है। वो लेवल ऑफ सिक्योरिटी है। यूपी के चीफ मिनिस्टर के सामने आप खड़े होकर के बात नहीं करेंगे, आपको कुर्सी पे बिठा देगी पुलिस, और सीएम दूर खड़े रहते हैं, और पीछे आपके वो उनके आपके कंधे के ऊपर ऐसे हाथ रख के शोल्डर्स पे, तब पुलिस खड़ी रहती है, उठने नहीं देगी वो। जब तक आप प्यार से बैठे हैं तो वो ग्रिप सॉफ्ट है, आपने उठने की कोशिश की तो ग्रिप एकदम स्ट्रांग हो जाएगी। वो हिलने नहीं देंगे, वो आपको खड़ा नहीं होने देंगे। प्राइम मिनिस्टर का अभी एक मैं आपने देखा होगा, जो राम मंदिर बन रहा है उसके जो ट्रस्ट है उसके हेड है नृपेंद्र मिश्रा, आईएएस हैं, वो रिटायर्ड आईएएस हैं, और वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे प्राइम मिनिस्टर के। नृपेंद्र मिश्रा ही वो व्यक्ति हैं जिनके लिए ट्राई के एक्ट में अमेंडमेंट कर दिया गया था, वरना टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है उसके एक्ट में लिखा हुआ है कि ट्राई का जो चेयरपर्सन है उसको कोई दूसरा अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। इस चीज को अमेंड करके उस प्रोविजन को हटाया गया, और तब उनको ट्राई, क्योंकि वो ट्राई के हेड थे नृपेंद्र मिश्रा, उसके बाद उन्हें प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था, क्योंकि उनकी जरूरत थी। यूपी कैडर का उनको बहुत ज्यादा अनुभव था, वाराणसी वगैरह में भी उन्होंने पोस्टिंग शायद रही है उनकी, उनको बहुत उन्होंने कहा कि रात में 11 बजे फाइनल होता है, ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल का आईएएस ये फाइनल करता है बैठ करके कि ये कौन लोग मिलेंगे, इनसे कौन नहीं मिलेंगे। ये पीएमओ का सिस्टम है। और वो एक बार लिस्ट इनको दिखा दी जाती है रात में, सर को 10 बजे तक, 10:15 बजे तक क्लियरेंस ले लेते हैं उनसे एक बार फाइनल अप्रूवल, और 11 बजे वो आ जाती है एसपीजी के पास कि ये लोग कल इनसे मिलना है। अभी मैं आपको मैंने सर से बोला भी है, वो फोर्सेस का वो पूरा बता आपको प्रिंट फॉर्म में या कंटेंट जो भी है वो दे दिया जाएगा, जो हमारी फोर्सेस हैं। एक सीआरपीएफ की एक टीम होती है जिसको हम बोलते हैं स्पेशल ड्यूटी ग्रुप, एसडीजी। एसडीजी इनके बंगले को घेर के रहती है, और जब आप उसके इनर एरिया में अप्रोच करने लगते हैं तो वहां पर एसपीजी मिल जाएगी अंदर, जो प्राइम मिनिस्टर को राउंड द क्लॉक सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। और जो लोग अंदर गए हैं उनके अगर आप देख लो या किस तरीके का वहां पे है, जिसने भी इस बारे में बात की है सबने यही कहा है कि बहुत ही टफ सिक्योरिटी चेक्स हैं उनके, मतलब उनके स्टैंडर्ड्स तो, आप जो भी चीज लेकर के जा रहे हैं वो सब पहले चेक होगी। कोई गिफ्ट है तो वो चेक हो जाएगा, उसकी लिस्ट बनाई जाएगी ये क्या दे रहे हैं, उसका पूरा रिकॉर्ड रहेगा कि इन्होंने इतनी तारीख को ये चीज दी है। खाने की चीज है तो उसको वो खाएंगे नहीं, बहुत कुछ होता है। ठीक है, ये नहीं है कि आप लेकर के चले गए सर लीजिए मिठाई खाइए, वो नहीं खाएंगे, नहीं खाएंगे, ही इज नॉट अलाउड बेसिकली। वो अपनी कार से नहीं उतर सकते हैं, वो लेवल सिक्योरिटी है, क्योंकि हिंटरलैंड टेररिज्म, देश में अंदर खतरा इतना ज्यादा हो जाता है।
क्योंकि हमें नहीं पता कि रिमोट कंट्रोल से कौन लोग काम कर रहे हैं, जिनको हम बोलते हैं स्लीपर सेल्स। वो अपना चुपचाप अपना काम में लगे रहो, जब आगे से आला का हुक्म साहब का जब ऑर्डर आएगा, हुक्म आएगा, तब आप एक्टिव हो जाइए और उस काम को अंजाम दीजिए। इसीलिए जो बुलेट प्रूफ कार्स होती हैं उनके शीशे डाउन नहीं हो सकते हैं, दे कैन बी रोल्ड डाउन, दे कांट बी रोल्ड डाउन। वो या गेट ही खोलना पड़ेगा सीधा, क्योंकि उसको ऊपर नीचे करने से उसकी जो ग्रिप है, वो जो जो बांधा गया उस शीशे को, वो ढीला पड़ सकता है, जो गोली को रोकेगा। इतनी मोटी लेयर होती है कि वो रोल हो ही नहीं पाएगा वो शीशा जो है, तब उस सिक्योरिटी में चलते हैं। कभी देखना, यहाँ तो बहुत बार आ चुके हैं ईसी रोड पर। एक बार तो मैं फंस गया था बहुत ही जबरदस्त तरीके से उसमें, उनके सिक्योरिटी प्रोटोकॉल में। मैं किसी काम से गया था, वो वहां पर एक शॉप पड़ती है एसी इसी रोड पर, और जब तक वो काम निपटता, मालूम था कि पीएम आ रहे हैं, जब तक वो काम निपटता तब तक उनका बिल्कुल ही टाइम हो गया। हमें थोड़ा 10-15 मिनट भी अगर मैं पहले फ्री हो जाता, मुझे 1.5 घंटा खड़ा रहना पड़ा उस जगह पर। अब खड़े रहिए, उस शॉप में उसने मुझे स्टूल दे दिया, वहां पे यहाँ बैठो, शीशे में से पीएम को देखना। मैं बैठा हुआ। भाई कोई नहीं निकल सकता, कोई नहीं, एक इंसान नहीं निकल सकता, जानवर नहीं निकल सकता। निकलेगा वो पुलिस वाला उस एरिया का बीट का सस्पेंड हो जाएगा, सस्पेंड हो जाएगा। जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है। राष्ट्रपति के प्रधानमंत्री के काफिले के सामने गाय आ जाना, कुत्ता आ जाना, यू विल बी सस्पेंडेड। उनकी गाड़ी की वो स्पीड होती है कि उस समय उसमें ब्रेक लगाना पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए बहुत ज्यादा कर्व वाले रास्तों पर जाने से अवॉइड किया जाता है। और जिस समय वो कर्व्स आते हैं, उसको एरिया को थोड़ा चौड़ा रखा जाता है, क्योंकि जब वो गाड़ी घूमेगी तो गाड़ी पलट भी सकती है, उतनी तेजी में निकलती हैं उनकी गाड़ियां। और 50-60 गाड़ियां होती हैं, वो सारी एक लाइन से निकलती हैं। अपने जीटीसी हेलीपैड पर आते हैं और फिर परेड ग्राउंड आते हैं। तो इंटरलैंड टेररिज्म का मतलब सीधा सा इतना है कि बॉर्डर एरिया से दूर अंदर देश में कहीं पे कुछ भी हो सकता है, और ऐसी बहुत सारी चीजें हुई भी हैं। लिखिए, was eliminated by Gujarat police. Full stop. Okay, to avenge this encounter, Asif's brother Amir Raza Khan, Asif's brother Amir Raza Khan, with the help of Huji B, with the help of Huji B, launched an attack on American consulate in Kolkata. With the help of Huji B, launched an attack on American consulate in Kolkata in 2002. American consulate in Kolkata in 2002. Launched an attack on American consulate in Kolkata in 2002. कभी अमेरिका की एम्बेसी दिल्ली अगर कभी आपका जाना हो तो चाणक्यपुरी में एक जगह पड़ती है शांति पथ। शांति पथ पे अमेरिका की एम्बेसी बनी हुई है, और नजदीक में ही पाकिस्तान का हाई कमीशन भी है। तो अब तो खैर पाकिस्तान का इंडिया में डिप्लोमेटिक कार्डर लगभग खत्म है, कोई रह ही नहीं रहा है। मगर वो जब टाइम होता है कि अमेरिका और पाकिस्तान आमने सामने हैं, मतलब उनके संबंध अच्छे नहीं चल रहे हैं, ऐसे में ऐसे दो देशों का एम्बेसी का नजदीक होना, वो अपने आप में थोड़ा सा टेढ़ा काम होता है। मोरोवर अमेरिकन एम्बेसी की जो सिक्योरिटी है दिल्ली में, वो गजब है। उसके सामने आप रुक नहीं सकते, उसके सामने आप यू टर्न नहीं ले सकते, आप फोटो नहीं खींच सकते, आप वीडियो नहीं बना सकते। आपको थ्रू आउट निकलना ही होगा वहां से, आप रोकेंगे नहीं अनलेस एंड अनटिल आपके पास कोई काम है। और वो काम भी अगर आपको अमेरिकन एम्बेसी में है तो आपको उसके लिए पहले ऑनलाइन अपॉइंटमेंट्स बुक होते हैं, तब अमेरिकन एम्बेसी में। आप एट रैंडम उस एम्बेसी में नहीं जा सकते हैं, वो लेवल है सिक्योरिटी का वहां पर। ठीक है, जिस समय ये लंदन में अपना झंडा खींचा गया था ना, ये खालिस्तान वाला मैटर हुआ था, उस टाइम में केंद्र सरकार ने क्या किया, जस्ट टू एवेंज दिस इंसल्ट ऑफ द इंडियन ट्राइकलर, द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस हैड डायरेक्टेड द सैनिटेशन मिनिस्ट्री टू कंस्ट्रक्ट अ पब्लिक टॉयलेट नियर द मेन एंट्रेंस ऑफ द यूके's हाई कमीशन इन दिल्ली। उन्होंने कहा यहाँ पे एक पब्लिक टॉयलेट बनाओ इनके दरवाजे पर, एम्बेसी के बाहर। अभी स्वच्छ भारत का वहां पे टॉयलेट बना रखा है,
उसका बदला लेने के लिए कि आपकी पुलिस इतनी निकम्मी है, हमारा झंडा खींचा लो। अब वहां पे पब्लिक जा रही है, टॉयलेट है, सब जाते हैं, सिक्योरिटी को कितना ब्रीच है। और उन्होंने वो हम निपट लेंगे, हम दिल्ली पुलिस लगाएंगे, हम सब करेंगे, मगर यहाँ पे टॉयलेट रहना चाहिए। सब लोग बोलेंगे कौन सा स्वच्छ भारत का टॉयलेट है, वो यूके एम्बेसी वाला है। ये अमेरिका के बाहर ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, कलकत्ते में अमेरिका के कॉन्सुलेट पर हमला हो जाना, देखो ये सब वो घटनाएं होती हैं जिससे दो देशों के बीच में बहुत ज्यादा संबंध खराब हो जाते हैं। भाई हमारा देश का झंडा खींचा, खालिस्तानियों का क्या गया, कुछ नहीं। संबंध किसके खराब हुए, इंडिया के और यूके के। वो तो खैर हो कि एक ऋषि सुनक जो है वो उस माइंडसेट के अभी प्राइम मिनिस्टर हैं, कोई गोरा पीएम होता तो बहुत ही मुश्किल हो जाती। अगर थेरेसा मे वगैरह जो अभी जो प्राइम मिनिस्टर थे, या वो जो इनसे पहले जो प्राइम मिनिस्टर थे, बोरिस जॉनसन वगैरह थे, लिज ट्रस थी, प्रॉब्लम होती, 100% होती। किसी भी देश में उसके एम्बेसी के ऊपर या इस तरीके से कुछ हमले हो जाना, ये बहुत ज्यादा अर्जेंट मैटर होता है, और इससे डिप्लोमेटिक टाइज और ओवरऑल इमेज खराब हो सकती है। कलकत्ता में कॉन्सुलेट बना हुआ, उसके ऊपर बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, और वो भी अमेरिका का। अमेरिका जो छोटी छोटी बात का, जैसे कहते हैं तिल का ताड़ बना देना, वो अमेरिका की आदत है। उनके कॉन्सुलेट पर हमला हो जाएगा तो क्या चुपचाप बैठने वाला है? ठीक है, तो ऐसे में इन लोगों से निपटना बहुत जरूरी है। लिखिए नेक्स्ट पैराग्राफ। मीनवाइल हिंदू एक्सट्रीमिस्ट ऑल्सो अटैक्ड मैनी प्लेसेस। मीनवाइल हिंदू एक्सट्रीमिस्ट ऑल्सो अटैक्ड मैनी प्लेसेस including Malegaon in 2006, including Malegaon also attacked many places, including Malegaon in 2006, comma Hyderabad in 2007, Hyderabad in 2007, Ajmer in 2007, and Samjhauta Express in 2007, and Samjhauta Express in 2007 to avenge the Akshardham attack of 2002, to avenge the Akshardham अटैक ऑफ 2002। अहमदाबाद के अक्षरधाम मंदिर में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, अक्षरधाम अटैक ऑफ 2002, एज वेल एज वाराणसी संकट मोचन हनुमान मंदिर ब्लास्ट ऑफ 2006। एवेंज दी अक्षरधाम अटैक, अक्षरधाम बोचासनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था, बीएपीएस। बीएपीएस जो है दुनिया भर में अक्षरधाम मंदिर को मेंटेन करती है। और अगर कभी आपने देखा हो, कभी आप फ्लाइट में या इसमें ट्रेवल करें, तो आप देखिएगा कुछ लोग, कुछ संत होते हैं जो लाइट ऑरेंज कलर के कपड़े पहनते हैं, और बिल्कुल सेंटर पे, ये फोरहेड के सेंटर पे यूजुअली लोग, ये जो नाक होती है, नोज और फोरहेड का जो जॉइंट होता है, इस पर तिलक लगाते हैं। बट वो स्वामी नारायण वाले ये बीच में तिलक लगाते हैं, गोल रेड कलर का, उनका इतना बड़ा बिंदी, और वो भगवान को ऐसे हाथ में लेकर के उनका एरोप्लेन से उनमें सफर करना। उनके स्वामी जहां भी चलेंगे वो साथ साथ में उनके ठाकुर जी चलते हैं, उनके अपने अलग बिलीफ सिस्टम है। ठीक है, तो अक्षरधाम मंदिर उन्हीं का होता है, गोल्ड का। और आर्कोलॉजिकल जो जो कार्विंग्स और ये सब जो चीजें जिसे हम बोलते हैं आर्किटेक्चर जो होता है, उसके तो गजब एग्जाम्पल हैं अक्षरधाम मंदिर। चाहे आप अहमदाबाद चले जाएं, या आप दिल्ली चले जाएं, या आप दुबई चले जाएं, वहां पर अक्षरधाम का मंदिर, शेख ने खुद ने लेटर लिखा था कि आप हमारे यहाँ भी एक मंदिर बनाइए आकर के, तब बीएपीएस वालों ने एक अक्षरधाम मंदिर दुबई में बनाया है। ठीक है, यूएई में। लिखिए वहां पर देखो, अक्षरधाम मंदिर बेसिकली एक केवल रिलीजियस साइट ही नहीं है, वो एक हेरिटेज भी है, क्योंकि उसका जो आर्किटेक्चर होता है वो बहुत अच्छा है, लोग उसे देखना पसंद करते हैं। वहां पे बहुत अच्छे फाउंटेन शो होते हैं, लेजर शो होता है, अक्षरधाम में टिकट लगती है अंदर जाने के लिए, वहां का एक डिसिप्लिन होता है जो इंसान को मेंटेन करना पड़ता है। ऐसी जगहों पर अटैक हो जाना, तो ये थोड़ा सा मैटर जो है ये ग्रेव हो जाता है। मगर फिर भी ये नहीं कहा जा सकता कि इन सब चीजों को अवेंज करने के लिए कोई दूसरा पक्ष बम ब्लास्ट करने लग जाए।
ये इसको कभी भी हम जस्टिफाई नहीं कर सकते। देखो महात्मा गांधी ने भी कहा था कि आंख के बदले आंख का कानून चला तो सब अंधे हो जाएंगे। ये बात ठीक है। अगर तुमने एक मारा, हम भी तुम्हारे दो मार दे, फिर तुम उसका बदला लेने के लिए हमारे तीन मार दो, फिर हम और चार मार दें, तो ये तो फिर तो ये तो चेन रिएक्शन है, न्यूक्लियर पावर प्लांट की तरह। फिर वो तो कभी रुकेगा ही नहीं, और रुकता भी नहीं है। कहाँ रुक ही रहा है, वो तो एजेंसीज लगी रहती हैं, तो वो सारी चीजों को हम अवॉइड कर पा रहे हैं। जरा सा ढील दो, फिर देखो क्या क्या होता है। ठीक। तो इन सब चीजों को जस्टिफाई कभी नहीं किया जा सकता है। ना संकट मोचन मंदिर में ब्लास्ट होना चाहिए था। अगर हो गया तो ये बुरी बात थी। इसका मतलब ये नहीं है कि अब आप समझौता एक्सप्रेस में ब्लास्ट कर डालें, या हैदराबाद की मक्का मस्जिद में ब्लास्ट कर दें। मक्का मस्जिद का ब्लास्ट का जिस समय फैसला, जिस दिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से आया था, आई वॉज इन हैदराबाद। मैं और मेरे बड़े भाई, हम दोनों लोग हैदराबाद गए थे, और वो मेरा पहला ट्रिप था हैदराबाद का। अभी तो मैं बहुत दफा हुआ आया वहां पे, मगर वो दिन था। और जब आप पहली बार हैदराबाद जाते हैं तो आपको दो चीजें तो देख ही लेनी चाहिए, एक होता है सालार जंग म्यूजियम और एक है चार मीनार हैदराबाद की। तो हम दोनों लोग हैदराबाद के चार मीनार पहुंच गए थे, और हमको पता भी नहीं था कि आज सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया है। और वहां पर तो वही मक्का मस्जिद बनी हुई है, वो बिल्कुल चार मीनार के पास में ही है मक्का मस्जिद। एक यूनानी दवाखाना है निजाम के समय का, वहीं वो चार मीनार है निजाम के समय की, और वही मस्जिद है वहां पे। और उसी मस्जिद में ब्लास्ट हुआ था। उन्होंने कहा देखिए, वो जो जो ऑटो वाला था वो बोला देखो आज सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि ये तो किसी ने, जो जो बात अभी मैं कह रहा था कि सबूत नहीं मिले, उन्होंने छोड़ दिया लोगों को। अब देवर हिंदू एक्सट्रीमिस्ट, छूट गए। तो कुल मिला के ये हुआ कि फिर सजा किसको हुई? किसी को भी नहीं हुई। तो अब हमने कहा अब हम क्या कर रहे हैं हम तो घूमने आए भैया, हमारी क्या गलती, हमें तो घुमाओ एटलीस्ट। तो वो देखा पूरा एरिया, फिर हम वहां से निकल आए, सालारजंग चले गए। तो जहां पर भी इस तरीके की चीजें हो जाती हैं, बहुत ही मतलब बुरा होता है। चार मीनार पे जिस दिन ब्लास्ट हुआ था वो शाम का वक्त था, बहुत भीड़ थी। चार मीनार पे तो वैसे भी बहुत भीड़ रहती है। चार मीनार पे आप कार लेकर के नहीं जा सकते, फंस जाएंगे वहां के जाम में। बिल्कुल कंजस्टेड एरिया है, और ऐसी जगह पे ब्लास्ट हो जाए तो समझिए फिर तो क्या आफत मचेगी। लिखिए, अक्षरधाम ऑफ 2002 एज वेल एज वाराणसी संकट मोचन हनुमान मंदिर। वाराणसी संकट मोचन हनुमान मंदिर, ब्लास्ट ऑफ 2006। वाराणसी संकट मोचन हनुमान मंदिर, ब्लास्ट 2006। फुल स्टॉप। लिखिए, नेक्स्ट हेडिंग डालिए, लोन वॉल्फ। लोन वॉल्फ। अच्छा, 1980s में भी जो जो ये हुआ था मैटर अपना खालिस्तान वाला, वो भी एक इंटरनल या हिंटरलैंड टेररिज्म ही बोला जाएगा, कि बस से उतार करके गोलियां मारी जा रही हैं। ठीक है, डीआईजी को खत्म किया गया है, या बहुत से तो मैटर्स मैंने आपको उसमें लिखवाए नहीं थे क्योंकि वो अननेसेसरी थे। और वो फिर देखो, इतने लंबे साल की जो बात है वो मैं 5 दिन में तो खत्म नहीं कर सकता क्या क्या चीजें हुई थी। गटर में से लाशें मिलती थी रोज सुबह। अब वो लोग मारे जा रहे हैं और वो गटर से बाहर निकल रहे हैं, तो कौन मार रहा है उनको? तो ये सब एक हिंटरलैंड टेररिज्म ही है। रोज लोग मर के निकल रहे हैं, वो अंदर मारे जा रहे हैं और बाहर लाशें मिल रही हैं। तो समझना पड़ेगा कि ये टेररिज्म है। डर के रहो। मैंने पहले ही दिन आपसे क्या कहा था, टेरर का मतलब क्या होता है? डर, आतंक। मैं डर गया हूं, मुझे लग रहा है कि अब कुछ सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। यही तो टेररिज्म है। अमृतसर में क्या हो रहा था? यही हो रहा था। ठीक है, लिखिए, लोन वॉल्फ अटैक्स। हेडिंग डालिए, लोन वॉल्फ अटैक्स। लोन वॉल्स आर रेडिकलाइज्ड इंडिविजुअल्स। लोन वॉल्स आर, लोन वॉल्व्स, भेड़िए, WOLVES, wolves. Lone wolves are radicalized individuals, often in foreign countries, who commit acts of terror, who commit acts of terror in the name of terrorist organizations, who commit acts of terror in the name of terrorist organizations.
These individuals have ties with terror outfits. These individuals have ties with terror outfits, but they work alone. These individuals have ties with terror outfits, but they work alone. ठीक है, terror organizations provide lone wolves. Terror organizations provide lone wolves with full ideological lone wolves with full ideological, comma, planning, ideological, comma, planning and logistic support, planning and logistic support to enable them to carry out the attack. To enable them to carry out the attack. To enable them to carry out the attack. मेरी क्लास में फिजिकली अभी मैं देख पा रहा हूँ, इसमें तो मुझे ऑनलाइन में दिख नहीं रहे, 11 लड़कियां हैं। मतलब जो इसको जो कहा गया था, यूपीएससी ने एक संसद भवन में जो रिपोर्ट दी थी, उसमें उन्होंने कहा था कि लड़कियों में खास तौर पे सिविल सेवा में जाने का ट्रेंड बढ़ रहा है, सिविल सर्वेंट्स बनना चाह रही हैं लड़कियां। मुझे लग रहा है कि वो जो रिपोर्ट है वो यहाँ पर लागू होती नजर आ रही है मुझे तो, संसद की वो रिपोर्ट, यूपीएससी की वो रिपोर्ट है। एग्जाम्पल लिखेंगे, ब्रेंटन हैरिसन टेरेंट, ये व्यक्ति का नाम है ब्रेंटन। मैं लिख देता हूं, मैं लिख देता हूं, रुक जाओ, गलत क्या लिखोगे, ब्रेंटन हैरिसन टेरेंट, ब्रेंटन हैरिसन टेरेंट had attacked Al Noor Mosque. Brenton Harrison Tarrant had attacked Al Noor Mosque and Linwood Islamic Center and Linwood Islamic Center, Linwood Islamic Center in Christchurch, New Zealand, in Christchurch, New Zealand, Christchurch जगह का नाम है, न्यूजीलैंड, in 2019. Full stop. He had live streamed this attack on social media platforms. Christchurch, New Zealand. Full stop. अच्छा, न्यूजीलैंड in 2019 है. Full stop. He had live streamed this attack on social media. उन्हें फेसबुक लाइव चलता था शायद, तब नया ही नया आया ही था फेसबुक लाइव। ये 18-19 में मेरे ख्याल में आया होगा फेसबुक लाइव, इससे पहले नहीं आया था। तो उसने उस पर चला दिया और वो बंदूक लेकर के, जिस समय नमाज अता हो रही थी उस टाइम वो घुसा और गोलियां मारता हुआ अंदर। आपने किसी ने देखा वो वीडियो? नहीं देखा है? हाहाकार मच गया अंदर। मतलब वो एक होता है चिल्लाना, इंसान कितना भी गुस्से में कितना जोर से चिल्ला लेगा ना, वो वैसा नहीं चिल्ला पाएगा जैसा उसने चिल्लाया था। इतना डिस्टर्बिंग वीडियो था, सबको खत्म कर दिया उसने जो सामने आ रहा था, लाइव चल रहा था, दुनिया ने देखा। और लोग तो इतने जबरदस्त होते हैं ना, वो इमीडिएटली ऐसे वीडियोस को डाउनलोड कर लेते हैं, अपने पास रख लेते हैं, आगे भेजते रहेंगे फिर बैठ करके, पता नहीं क्या मजा आता है। ये नकारात्मक चीजें जितनी होती हैं, नेगेटिव होती हैं, कोई हो गया, कोई मर गया है या कुछ हो गया है, बुरा हो गया है, उसके ट्रेन का हादसा हो गया है,
बुरी स्थिति में है, लोगों की डेड बॉडीज है, उनकी फोटो खींच के वायरल कर दी। अरे भैया क्या मिल गया तुमको, होगा क्या इससे? हाँ, घूमते फिरते वो मान लो उन्हीं लोगों के परिवारजनों के पास पहुंच जाए फोटो, वो कोई रोक थोड़ी ना सकता है। वो तो सोशल मीडिया है, इसको कहां से कहां तक कोई भी वीडियो भेज जाएंगे। ठीक है। या जैसे जो लोग होते हैं ये ऑनलाइन में डॉक्टर्स हैं, खासतौर पर एमबीबीएस वगैरह की ट्रेनिंग कर रहे हैं, उनको ऑटोप्सी सिखाई जाती है, उन्होंने वहां पे खड़े होकर इसका वीडियो बना लिया, जो व्यक्ति का पोस्टमार्टम हो रहा है, और उन्होंने उसे यूट्यूब पे पोस्ट कर दिया और लिख दिया एजुकेशनल वीडियो। अब यूट्यूब भी नहीं हटाएगा उसको। अब वो एजुकेशनल वीडियो मान लो उसका लिंक उसी लड़के के परिवारजनों को मिल गया, तो उनको कैसा लगेगा? कोई कैसा भी देखना चाहे, मगर कोई अपने लड़के को उस पोस्टमार्टम की टेबल पर नहीं देखना चाहेगा, कोई कैसा भी क्यों ना हो। अपने बुरे से बुरे लड़के को भी कोई उस हालत में नहीं देखना चाहेगा। यहाँ पे उसके शरीर पर ना कोई कपड़ा है और डॉक्टरों ने उसको बिल्कुल खोल दिया है ऊपर से नीचे तक। मगर इंसान है, सबकी अपनी अपनी बुद्धि है, कोई क्या कर सकता है। कितनी बार एक्सीडेंट हो जाते हैं, वो लोग उसकी फोटोग्राफी कर रहे होते हैं वहां खड़े होकर के, अपनी बाइक लगा दी किनारे, उतर आए, फोटो खींच रहे हैं। नैतिकता मर गई है, मोरालिटी है वो समाप्त हो चुकी है। लिखिए नेक्स्ट एग्जांपल लिख लेंगे। इन 2019 itself, a car driven by a suicide bomber a car driven by a suicide bomber was crashed with the convoy of was crashed with the convoy of CRPF at Lethpura in Pulwama district. Convoy of CRPF at Lethpura, Lethapora, Lethpura, Lethapora, Lethpura in Pulwama district of Jammu and Kashmir. पुलवामा डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू कश्मीर मत लिखेंगे, लिख लेंगे अर्स्ट वाइल जम्मू एंड कश्मीर लिखेंगे। अर्स्ट वाइल, अर्स्ट वाइल जे एंड के स्टेट कर देंगे, क्योंकि अब वो है नहीं। अर्स्ट वाइल जम्मू एंड कश्मीर स्टेट, फुल स्टॉप। इन दिस अटैक 40 CRPF soldiers were martyred. 40 CRPF soldiers were martyred. 14 फरवरी को दिन ये घटना हुई थी। एंड आई वॉज इन दिल्ली, और दिल्ली में तो जो सुरक्षा होती है वो तो उस दिन देखने लायक थी, पूरे में पुलिस लगा दी गई थी। और जो ये जो जहाँ IAS वगैरह के सब लोग जो एस्पिरेंट्स रहते हैं, वो एरिया कहलाता है ओल्ड राजेंद्र नगर। ओल्ड राजेंद्र नगर से सीधा रास्ता जाता है धौला कुआं टुवर्ड्स द एयरपोर्ट। उस रास्तों में पूरे में पुलिस थी, क्योंकि वो पालम टेक्निकल एरिया पे सब डेड बॉडीज आएंगी और सलामी होगी, सब कुछ होगा। शाम को आने थे शव, उस दिन से पूरे में उस एरिया में पैक कर दिया गया था। अगले दिन की बात है, शायद 15 तारीख को फिर वो शव लाए गए थे, प्रधानमंत्री ने सलामी दी थी। लिखिए, और हार्डली 13 दिन भी नहीं पूरे हो पाए थे और सर्जिकल स्ट्राइक कर दी उड़ी में। सर्जिकल स्ट्राइक कर दी थी, खत्म। सॉरी, बालाकोट की एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुई थी। सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी उड़ी, उड़ी अटैक के बाद, पुलवामा के अटैक के बाद। तो वो भेजे थे मिराज हवाई जहाज, इनके ऊपर आप जरा बम बरसाओ ऊपर से, इनके ऊपर बारिश करो, तब जाके समझ में आएगा। बालाकोट में एयर स्ट्राइक हुई थी, ओ हो, वो भी ये एक अलग ही दिन था। कभी नहीं देखा था ऐसा भी एक्शन हो जाएगा, और सोचा भी नहीं होगा, पाकिस्तान ने तो कभी नहीं सोचा होगा कि ये हमारा ऐसा हाल कर देंगे। और आप देखो, एयर स्ट्राइक के बाद से आज तक पाकिस्तान सीधा खड़ा नहीं हो पाया है। हिम्मत नहीं होती है उनकी बोलने की, किसी अधिकारी की या किसी की भी, क्योंकि इन्हें पता है। और वो बालाकोट का एयर स्ट्राइक के बाद ही देख लो, वो अभिनंदन वर्तमान को छोड़ने की बात थी, जो इजेक्ट हुए थे वहां पर और गिर गए थे, और शाम को छोड़ दिया था पाकिस्तान ने, क्योंकि इतने में तो उन्होंने ये तो बम बरसाए हैं, जब हमारे पास उनका कोई नहीं है। और अगर हमने उनका लड़का पकड़ लिया है, बंद कर दिया उठा करके, तब तो समझो इंडिया हमारा क्या हाल करेगा। उन्होंने इमरजेंसी में पार्लियामेंट्री सेशन बुलाया और सबने PM से यही कहा कि आप कुछ करें ना करें, फिलहाल इन्हें छोड़ दें, इन्हें जाने दो, वरना इंडिया हमें तो रहने लायक नहीं छोड़ेगा। ये तो उनकी स्ट्रीमिंग्स है लाइव पार्लियामेंट की, वो भी वायरल हो गई उनके यहाँ से। अपना संसद की कार्यवाही भी नहीं बचा पाए बेचारे।
मुझे ध्यान है जब तेलंगाना बन रहा था, 2013 की बात है, मीरा कुमार होती थी स्पीकर। तो उसके जो लाइव स्ट्रीमिंग होती है ना लोकसभा की, अब तो संसद टीवी हो गया, पहले लोकसभा और राज्यसभा दो अलग अलग टीवी होते थे, एल एस टीवी, आर एस टीवी। एल एस टीवी की जो लाइव स्ट्रीमिंग थी उसको रोक दिया गया। जो पुराना संसद था, अब इसका तो मुझे सिस्टम मालूम नहीं, पुराने संसद में स्पीकर के चेयर के पास में इधर लेफ्ट हैंड साइड पर एक स्विच होता था, और उस स्विच को अगर उन्होंने ऑफ कर दिया तो जो एल एस टीवी की जो टीम है जो उसको रिकॉर्ड कर रही है उनके पास सीधा सिग्नल चला जाएगा कि आप इसको रोक दें, इसका प्रसारण अभी फिलहाल के लिए। और वैसे भी उसमें एक लेटेंसी होती है, मतलब वो लाइव नहीं चल रहा होता, उसमें कुछ 2-5 मिनट का गैप होता है यहां से होने में और रिले होने में, उसमें कुछ गैप रखा जाता है जिससे हम लेटेंसी बोलते हैं टेक्निकल टर्म्स में। वो वहां से स्टॉप कर दिया गया उसकी लाइव स्ट्रीमिंग। देश ने देखा कि लोकसभा अभी जो है वहां पे स्थगित हो गया, एडजर्न हो गया सेशन, दंगा वो अंदर सब लड़ रहे हैं ज्यादा ही, और वो बंद हुआ है, उसके बाद सब लोग शांत हो गए, कैमरा ऑफ हो गया है और स्टेट बन गया, और शाम को खबर आई कि तेलंगाना बन गया। देश ने देखा ही नहीं, तेलंगाना की स्ट्रीमिंग रोक दी गई थी उस टाइम। ये सब जो घटनाएं हैं बहुत ऐतिहासिक घटनाएं हैं पाकिस्तान में, पर ऐसा नहीं हो सका। उन्होंने ऑन रिकॉर्ड सबने बोल दिया कि क्या हालत है उनकी। लिखिए, इन द परपिट्रेटर आदिल अहमद डार वॉज अ लोन वॉल्फ ऑफ जैश ए मोहम्मद। द परपिट्रेटर आदिल अहमद डार, जो वो गाड़ी चलाता हुआ लाया था लड़का, द परपिट्रेटर आदिल अहमद डार वॉज अ लोन वॉल्फ ऑफ जैश ए मोहम्मद। जैश ए मोहम्मद, हेडिंग डालिए एंटी टेरर लॉज इन इंडिया। एंटी टेरर लॉज इन इंडिया, एंटी टेरर लॉज इन इंडिया। सबसे पहला डालिए टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज, टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1985। ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था, श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या हो गई थी, तो हमें ये पता चला कि कुछ टेररिस्ट या डिसरप्टिव एक्टिविटीज इस देश में ऐसी हो गई हैं जिनसे निपटने के लिए हमें कानून चाहिए। ठीक है, देखो प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी एक प्राइम मिनिस्टर तो थे ही, मगर कहीं ना कहीं वो एक ऐसा लड़का था जो अपनी माँ के इस तरीके से मारे जाने से बहुत ज्यादा परेशान था। और वो कोई भी लड़का हो सकता है, एक बेसिक ह्यूमन टेंडेंसी है, किसी की माँ को इस बेरहमी से मार दिया जाए तो उसको झेलने की जो इमोशनल इंटेलिजेंस होता है उसका हम एक्सपेक्ट हर किसी से कर नहीं सकते हैं। बहुत ही शायद लाखों में कोई एक होगा जो छोड़ देगा। जैसे शंकर दयाल शर्मा जो राष्ट्रपति थे, उन्होंने अपनी बेटी और दामाद के हत्यारों की फांसी की सजा माफ कर दी थी। सोचो अब आप, प्रेसिडेंट शंकर दयाल शर्मा की टेबल पर वो मैटर आया था कि आपकी बेटी और दामाद को जिन्होंने गोली मारकर खत्म किया है दिल्ली में, इनको फांसी देनी है और आप इसको माफ कर दीजिए राष्ट्रपति जी से। जो हम जो हर कोई प्रेसिडेंट के पास ही जाता है ना, अपने कैपिटल पनिशमेंट या फांसी हमेशा केवल राष्ट्रपति माफ कर सकते हैं और किसी के पास पावर नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया लटका दो, तो फिर अब राष्ट्रपति आखिरी आपका सहारा है, वो अगर माफ कर दें तो कर दें, वरना वो लटका दिए जाओगे। तो उन्होंने राष्ट्रपति के सामने लगाई सब अर्जी, तो राष्ट्रपति ने, सरकार ने उनसे बोला कि अब आप देख लीजिए आपको जैसा करना। उन्होंने कहा नहीं, राष्ट्रपति वो करता है जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कहते हैं। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने कहा छोड़ देना चाहिए, उन्होंने ठीक है साइन कर दिया। तो ये इमोशनल इंटेलिजेंस हम हर किसी से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। जो राजीव गांधी के समय में जो ये टाडा आया, वो बहुत ही ब्रूटल एक्ट था, वो ऐसा सख्ती से निपटने का कानून था। आपको पता है ना, ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद फिर ऑपरेशन एक ब्लैक थंडर चलाया गया था अलग से। ठीक है, ब्लैक थंडर में तो और भी ज्यादा क्रिटिकली इन लोगों को एलिमिनेट करने का उन्होंने कहा था, फ्लश आउट करने हैं, हटाना है इसको।
जैसे डैम की टरबाइन में गाद जमा हो जाती है ना, सिल्ट, उसको निकालते हैं तब पानी खुलता है, वो वाला वैसे फ्लश आउट करना है टेररिस्ट को। केपीएस गिल को चार्ज दिया गया था, मैंने सब लिखवाया ही हुआ है आपको उसमें। तो टाडा आया था, टाडा में बहुत सारे चीजें थी, जिसमें एक सबसे बड़ी जो बात थी वो ये थी कि इंसान को खुद को ये साबित करना पड़ेगा कि उसने कुछ गुनाह नहीं किया है, वरना सरकार बंद कर देगी। ऐसे में क्या होता है कि ये प्रूफ पुलिस को करना पड़ता है कि ये जिन्हें पकड़ के लाए हो इसने काम किया है। अगर मैं जाकर के जज के सामने कहूँ कि हाँ मैंने हत्या की है, मैंने हत्या की है, मुझे बंद कर दो, तो जज नहीं करेगा, प्रूव करो पहले। आप पुलिस से कहेंगे कि ये प्रूव करिए कि इन्होंने हत्या की है, ठीक है ना। अगर ड्राइवर चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि मैं गाड़ी चला रहा था जिस समय फुटपाथ पर लोग सो रहे थे और उनका एक्सीडेंट हो गया है, तो ये ड्राइवर की बात असली नहीं मान ली जाएगी। ऐसा भी तो हो सकता है ड्राइवर से किसी ने कहा हो ये लाइन बोलने के लिए, वही है। अब फिर तो इसलिए बर्डन ऑफ प्रूफ जो होता है पुलिस के ऊपर होता है, कि पहले आप ये लेकर आओ प्रूफ कि इसी ने ही मारा है, तब हम इसको बंद करेंगे। टाडा के केस में उल्टा था, आप ये साबित करो कि आपने नहीं किया, वरना बंद तो हम तुम्हें कर ही रहे हैं, उसमें प्रॉब्लम क्या है, पकड़ के बंद कर देंगे। अब आप साबित करो कि सर मैं उस दिन कहीं और था, मैं कहीं ट्रेवल कर रहा था, या मैं कहीं कहीं बाहर गया हुआ था, तो आप कर पाओ तो करो, वो कोई कर नहीं पाया, वो मौका कहाँ मिलेगा, बंद कर देंगे उठा करके जेल में। टाडा जो है फिर बाद में रिपील कर दिया गया, लिखिए। टाडा 1985 was introduced after the assassination of Srimati Gandhi. टाडा 1985 was introduced after the assassination of Srimati Gandhi. It was the first anti-terror act in India. It was the first anti-terror act in India. It was designed while keeping Punjab insurgency in view. It was designed while keeping Punjab insurgency in view. It was designed while keeping Punjab insurgency in view. Stop. In 1995, it was repealed. In 1995, it was repealed. Repealed. In view. In 1995, it was repealed. इसमें बहुत ही ब्रूटल प्रोविजंस डाल दिए थे। जैसे एक था, ये यूजुअली क्या होता है, पुलिस किसी को भी अरेस्ट करती है तो 24 घंटे के अंदर उसको मजिस्ट्रेट के सामने ले जाकर के खड़ा करना होता है। ये सीआरपीसी कहता है कि आपने किसी को अरेस्ट कर लिया है तो आप मजिस्ट्रेट को दिखाओ, ठीक है। आपने गंगा जल मूवी देखी है? गंगा जल नहीं देखी है? अच्छा, उसमें एक सीन है जिसमें वो जो पकड़ करके लाए हैं गुंडों को, तो उसमें एसपी अमित कुमार जो है, जो अजय देवगन का जो किरदार है, अजय देवगन ये कह के जाते हैं रजिस्टर में एंट्री मत करना, इनसे सवेरे निपटेंगे। तो रजिस्टर में जब एंट्री होती है तो तारीख के साथ टाइम भी डलता है कि इतने बजे हम इन्हें पकड़ के लाए हैं, फिर 24 घंटे में प्रोड्यूस करना पड़ेगा, ये होता है ना। तो हमने अभी रजिस्टर में एंट्री नहीं की, ऐसे ही ले जाकर के बंद कर दिया। एफआईआर इतनी इजीली नोट करती नहीं है पुलिस, ठीक है। इसमें क्या था, टाडा में उन्होंने कह दिया कि मजिस्ट्रेट के सामने ले जाने की जरूरत नहीं है 24 घंटे से पहले, बाद में देखी जाएगी। अरे उसको पकड़ के 24 घंटे में तो पुलिस क्या उसका बना देगी, इंसान को कैसे क्या कर देगी, पुलिस तो पुलिस है, ठीक है। एक इसमें जो होता कि 1 साल तक चार्जशीट दाखिल करने की जरूरत नहीं है कोर्ट में, कोर्ट को ये बताने की जरूरत ही नहीं है कि इन्हें हमने किन धाराओं में पकड़ा है। पुलिस एक चार्जशीट बना करके देती है ना, भाई ये चीजें हैं, फिर उसमें बहुत से चार्जेस कोर्ट ड्रॉप भी कर देती है कि नहीं ये बेकार लगाया है, इसको हटाओ, फिर जो बचेगा उसके हिसाब से सजा तय होगी। वो चार्जशीट 1 साल तक देने की जरूरत ही नहीं है। तो ये देखा गया कि तो एक्सेस हो गया है। उस समय में ठीक है, उस समय गवर्नमेंट ने जैसे भी कंट्रोल किया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो जो ऑब्जेक्टिव था पंजाब इंसर्जेंसी, आज वो खत्म है। पंजाब इंसर्जेंसी एक बीता हुआ टॉपिक हो गया है, ठीक है। मगर 1995 में फिर इससे छुटकारा पाया गया। नेक्स्ट लिखिए, पोटा, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट 2002। प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट 2002।
हुआ क्या कि संसद का सेशन चल रहा था, जैसे आजकल विंटर सेशन चल रहा है ना, कल से विंटर सेशन स्टार्ट हुआ है, और कल ही मिजोरम के चुनाव के नतीजे भी आए थे। किसी ने देखा ही नहीं ज्यादा है। आपने देखा? मिजोरम के नए चीफ मिनिस्टर होंगे जो एक समय में इंदिरा गांधी के सिक्योरिटी इंचार्ज थे, आईपीएस ऑफिसर। पता है? इंदिरा गांधी का जो जो फाइनल जो टाइम था, उस समय जो उनके जो सिक्योरिटी इंचार्ज थे वही अभी मिजोरम के नए चीफ मिनिस्टर साहब होंगे। और अगर सब कुछ एज पर द शेड्यूल रहा, जैसा अभी तक जो देखा गया है और जो भी है, तो छत्तीसगढ़ के नए सीएम जो होंगे वो एक रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर है, ओपी चौधरी। तो ऐसे लोग जो हैं अब आईएएस आईपीएस जो हैं वो रिटायर हो के सीएम्स बनेंगे, तो बहुत अच्छी बात है, क्या प्रॉब्लम है इसमें। और जिसमें ओपी चौधरी ने तो बीआरएस ले लिया था, तो बहुत ही अर्ली एज, और रायपुर के डीएम रहे हैं। तो सोचिए कभी देहरादून का डीएम आगे चल के उत्तराखंड का सीएम हो जाए, तो उससे बढ़िया और क्या बात हो सकती है। पढ़ा लिखा चीफ मिनिस्टर आ गया तो इसमें क्या बुराई है। ठीक है, तो आजकल कुछ कुछ नाम चल रहे हैं, तो देखना होगा, अभी समय बताएगा कि कौन कौन सीएम होंगे। 5 नए सीएम आने हैं ना, अभी राजस्थान का पता है ना एमपी का पता है। इस बार तो चुनाव ऐसे हुए हैं, बस एक तेलंगाना के रेवंत रेड्डी छोड़ करके बाकी के तो पता ही नहीं है कि चारों में सीएम बनेगा कौन। लिखिए जरा। कोटा स्टैंड्स फॉर प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट 2002. It was enacted in the backdrop of the 2001 Parliament attack. It was enacted in the backdrop of 2001 Parliament attack. पार्लियामेंट का सेशन चल रहा था, अटल बिहारी वाजपेयी साहब प्रधानमंत्री थे, उनकी फ्लीट पार्लियामेंट एनेक्सी में एंट्री ली। तो उस समय में एक दिल्ली पुलिस की सिक्योरिटी वगैरह और जो सीआरपीएफ जो रहती है वो सब ड्यूटी पर लगा रखे थे। पहले तो दिल्ली पुलिस थी, सीआरपीएफ को तो तब दिया ही नहीं था चार्ज। जो सिक्योरिटी, जो उनका पार्लियामेंट्री सिक्योरिटी ग्रुप अलग से था दिल्ली पुलिस का, जो मैनेज करता था। तो वैसी एक एम्बेसडर और एंट्री ली। उन लोगों को ये लगा कि शायद ये इन्हीं की फ्लीट की गाड़ी होगी, इतनी गाड़ियां अभी आई हैं, उन्हीं की एक होगी, जबकि उसमें टेररिस्ट थे अंदर, और वो पार्लियामेंट में एंट्री ले गए अंदर। तो जो ये अपने स्पीकर भी रही हैं सुमित्रा महाजन, उन्होंने उन सब चीजों को रिकॉल भी किया। उन्होंने कहा कि ऐसा लगा कि जैसे थोड़ी देर पहले तो वो गाड़ी जब तक आई तब तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी और किसी का ध्यान ही नहीं गया इस मैटर पे, मगर फिर लगा कि फायर हुआ है, कहीं से गोली चली है। और उस समय में बहुत सारे सीनियर जर्नलिस्ट जो डीडी के, आकाशवाणी के, और इवन ये राजदीप सरदेसाई वगैरह जो आजकल इंडिया टुडे के साथ जुड़ गए हैं, बड़े बड़े पत्रकार, वो पार्लियामेंट में सब रहते ही हैं। आजकल आप पार्लियामेंट चले जाओ तो वहां तो आपको दुनिया जहान के वहां पे जर्नलिस्ट, इवन फॉरेन जर्नलिस्ट भी मिल जाएंगे वहां पे अंदर संसद में जिस समय कार्यवाही चलती है। बोले गोली चली तो पहले क्या होता था कि बंदरों को भगाने के लिए और कबूतरों को उड़ाने के लिए फायर होते थे, वो एयर गन से। बोले वैसा फायर लगा कि हो सकता है बंदरों को भगाया जा रहा हो, प्रधानमंत्री की एंट्री होने वाली है, हो गई है। उसके बाद वो फायर एकदम से बढ़ने लगे। जब वो फायर बढ़े तो वो सिक्योरिटी भी अलर्ट हुई कि ये क्या हो रहा है। और जब तक होता होता वो मेन उसका एंट्री बंद कराई जाए, जहां से लोकसभा में घुसते हैं और जो राज्यसभा में घुसते हैं, सेंट्रल हॉल की एंट्री है, जब तक उसको पैक करें। अब यही ना समझ में आए कि इन लोगों को रोकें, कि आईएएस की जान बचाएं, कि जो जो जर्नलिस्ट खड़े हैं उनको बचाएं। और सबसे पहली बात है कि प्राइम मिनिस्टर उस समय वो उसमें कॉरिडोर में ना आ जाए सामने, जो संसद में जो पिलर्स बने हुए थे, वो जो राउंड बिल्डिंग है, अगर वहां से वो निकल कर जा रहे होंगे तो ये तो ओपन टारगेट है, इनको तो खत्म करना बड़ा ही आसान है। तो ये अंदर खबर भेजनी है तुरंत। तो मतलब जिसे कहते हैं फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में इसको कार्यवाही को करना। हमारे बड़े जवान उसमें शहीद हुए, इवन पार्लियामेंट के स्टाफ भी, उसमें 2 लोगों की डेथ हुई थी। उस दिन के बाद से सीआरपीएफ का पार्लियामेंट्री ड्यूटी ग्रुप है पीडीजी, पीडीजी इसको देखता है, किसी को नहीं एंट्री। और उस समय अगर पीएम आएंगे तो पीएम की सिक्योरिटी वो तो एसपीजी देखती है, तो वो तो पीडीजी को कोई मतलब ही नहीं है। बिल्डिंग की सुरक्षा पीडीजी के हवाले है। और अब आप नहीं एंट्री ले सकते हैं। अब तो इतने अच्छे स्टिकर्स आ गए हैं जो पास होते हैं, एंट्री पासेस, वो गाड़ी की विंडशील्ड पर लगे रहते हैं। उस पर क्लियरली मेंशन्ड होता है कि इस गाड़ी की एंट्री कहाँ तक है। जो लोग जैसे स्पीकर लोकसभा है या वाइस प्रेसिडेंट की गाड़ी है या डिप्टी स्पीकर लोकसभा है, एलओपी है, इनकी गाड़ी के स्टिकर पर क्लियरली मेंशन रहता है इनर एंट्री,
इनर एंट्री का मतलब है कि उस सिक्योरिटी वाले देख करके उस गाड़ी को अंदर अलाउ कर देंगे कि इन्हें अंदर तक जाने दिया जाए, बाहरियों की सबकी गाड़ी पार्किंग में रुकवा दी जाएगी। और बाकी जैसे हम और आप हैं तो हमारी तो गाड़ी तो वो कोई मतलब ही नहीं है, तो वो घुसने का तो वो तो वहां जा ही नहीं सकते और उसके गेट को भी नहीं छू सकते, आप ये समझ लो। वो सिक्योरिटी लेवल है पार्लियामेंट का, ठीक है। और होना चाहिए भी, क्योंकि जब हम एक और ये कह रहे हैं कि हम चौथी या तीसरी या दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे, संसद ही सुरक्षित नहीं है तो कहाँ की अर्थव्यवस्था। संसद तो केंद्र है, सारे आपके नियम कायदे सब कुछ तो वहीं से चल रहा है, पूरा देश ही वही है, सारे देश के लोग वहीं आए हुए हैं, तो उसको तो सिक्योर करना तो बहुत जरूरी है, पार्लियामेंट हाउस को। ठीक है, लिखिए पोटा में लिखेंगे 2001 पार्लियामेंट अटैक बाय लश्कर तैयबा ऑफ हाफिज सईद, लश्कर तैयबा ऑफ हाफिज सईद। अभी थोड़े साल पहले की बात है, हाफिज सईद के भतीजे को मार दिया गया, हाफिज सईद के दामाद को मार दिया गया, पता ही नहीं चला किसने मारा, संसद पर अटैक किया था, हो गया काम। ये होता है, ठीक है। तो एजेंसीज हमेशा एक्टिव रहती हैं, वो मौके की तलाश में है, वो ये ना आप सोचें कि आप बच गए हैं, आपने उल्टा काम किया है, भारत की संसद पर हमला किया है। हर साल हम बरसी मनाते हैं संसद के हमले की, हर साल प्रधानमंत्री लोग सवेरे सवेरे वहां जाते हैं, उसमें पुष्प चढ़ाते हैं, तो वो हमारा एक हमेशा एक ग्रीन वोंड है, एक हरा घाव है, वो अभी भी चल ही रहा है, वो एक्टिव है, समझ ले ब्लीडिंग वुंड है वो। तो उससे निपटने के लिए हाफिज सईद के जो आसपास के लोग थे उनको एलिमिनेट करना शुरू कर दिया गया है। देखिए, इट वाज रिप्लेस्ड बाय इट वाज रिप्लेस्ड बाय यूएपीए, सॉरी 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 सॉरी, इसमें लिखेंगे कि इट हैड रिप्लेस्ड टाडा, इट हैड रिप्लेस्ड टाडा, इट हैड रिप्लेस्ड टाडा, टीएडीए। ठीक है, लिखिए, हेडिंग डालिए यूएपीए 1967, यूएपीए 1967, यूएपीए 1967। लिखिए, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट was introduced to control the activities of to control the activities of antisocial individuals and associations, antisocial individuals and associations, and of matters connected therewith, individuals जैसे गुरपतवंत सिंह पन्नू है, ये खालिस्तान वाले जिन्होंने सिख फॉर जस्टिस बना रखा है, वो खालिस्तान बना देंगे, भारत से तोड़ लेंगे, हक जीत लेंगे, मतलब मूर्खतापूर्ण बातें करना, बिना सोचे समझे बोलना, सरकार ने उन्हें यूएपीए के तहत बैन कर रखा है। आप एंटी सोशल हैं, आप शांति के खिलाफ बोलते हैं, ठीक है, तो आप यूएपीए में बैंड हैं, यूएपीए में बैंड है इसका मतलब। और ये सब चीजें पासपोर्ट के जो 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 रिकॉर्ड होता है ना उसमें दिखती हैं, कोई हम ये सोच लें, जब हम इंटरनेशनली ट्रेवल करते हैं ना, हम कहीं से वीजा अप्लाई करते हैं, तो वीजा अप्लाई करने में तुरंत नहीं मिल जाता है ना, उसको थोड़ा सा टाइम लगता है। तो कुछ देश होते हैं यहाँ पर वीजा ऑन अराइवल होता है, तो ऐसे लोगों का तो पासपोर्ट ही सस्पेंडेड है, वीजा ऑन अराइवल उन्हें मिलेगा कहाँ से, वो हवाई जहाज में बैठेंगे ही कैसे, पहली बात तो ये है। और कुछ लोग अगर मान लो ऐसे में बच भी जाते हैं, तो जो इस तरीके के जो देश होते हैं बड़े, वहां पे वीजा अराइवल यूजुअली फ्री रखते नहीं है, वीजा तो लेना ही पड़ता है। जैसे अमेरिका वगैरह में तो बहुत ही मुश्किल है वहां का वीजा निकालना, आपको इंग्लिश आनी चाहिए, और पता नहीं उनके कितने सारे नियम कायदे हैं, क्यों जा रहे हो, सबसे पहला तो यही कर लेंगे, नौकरी है तो नौकरी वहीं क्यों करनी है, कहीं और क्यों नहीं करनी है, ऐसे आपको दिल्ली बुला करके इंटरव्यू लेते हैं। तो वो जब आपका वो उनके यहाँ जब आप अप्लाई करते हैं ना, तो आपकी वो पूरी जन्म कुंडली खंगाल लेते हैं बेसिकली, और उन्हें पता चल जाएगा। यूएपीए में जो बैंड लोग हैं उनका सब सारा डेटा जो है एजेंसीज के पास पहुंच जाता है, तो मिलेगा ही नहीं। आज के टाइम में गुरपतवंत सिंह पन्नू जो है ना,
वो इंग्लैंड वहां पे तो घूम रहे हैं कनाडा में, मगर वो बहुत ज्यादा ट्रेवल नहीं करेंगे डर के मारे। और खास तौर पे वो उन देशों में तो खास तौर पर नहीं जाएंगे जो हमारे फ्रेंडली कंट्रीज हैं। क्या पता पकड़े गए, क्या पता चले ही गए, मालूम कहाँ चलता है। तो इंडिया के फ्रेंडली कंट्रीज में वो खास तौर पर नहीं जाएंगे। वो वहां बोलो तुम जो बोल रहा है, ट्रूडो जब तक है। और जिस दिन ट्रूडो भी हटे, एक कहावत है, बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी, वो हालत हो जाती है फिर जिस दिन सरकार बदली। क्योंकि वहां के जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है वो प्रो इंडिया है। मैंने उनकी स्पीच वगैरह सुन ली है पार्लियामेंट में, जब बोलते हैं वो क्लियर बोलते हैं कि इन्होंने हमारी इमेज खराब कर दी है। इन्होंने पीएम ने भी कर दी और इनके पीएम के पाले हुए जो लोग हैं इन्होंने भी कर दी। इन दोनों से निपटना होगा अब कनाडा को। तो ट्रूडो आज नहीं तो कल जाना तो है ही। देखो कोई परमानेंट तो ऐसे सिकंदर तो है नहीं ट्रूडो कि रहेंगे ही रहेंगे। सिकंदर भी चले गए थे, एक समय आया खाली हाथ लेकर के वापस चले गए। कभी हटोगे तो तुम जो जिनको तुमने अभी पाला है, तैयार किया है, वो सारे एलिमिनेट किए जाएंगे। इन सबको बाहर निकाला जाएगा। क्योंकि कोई देश नहीं झेलता ये। 2% की आबादी पूरा देश बदनाम करा दिया। तो क्यों तुम्हें, और वो भी तुम उनके नेटिव नहीं हो। तुम गोरी चमड़ी के होते तो मान भी लेते, कनाडा एक बार झेल भी लेता। तुम दूसरे देशों से पहुंच पहुंच कर वहां पर जाके इंडिया से गए हैं, पाकिस्तान से गए हैं, और अब एक हो गए हैं। और अब कहते हैं कि हम जो है, और वहां पे भी कब्जे कर लिए हैं। तो ऐसे में इनको हटाना तो पड़ेगा। अब इंडिया आ नहीं सकते क्योंकि यहाँ यूएपीए लग जाता है। इनकी संपत्तियां जो है गवर्नमेंट ने प्रॉपर्टी इनकी सारी कब्जे में कर ली हैं। गुरदासपुर में बुलडोजर चला था, इनके घरों पर घर तोड़े गए थे। बताइए। पंजाब में मोगा में, गुरदासपुर में जो जो इनके जो अड्डे बना रखे हैं, जो भी जिसका भी घर है वो तोड़ दिए सरकार ने। आओगे तो कभी तो आओगे। खेत है वो सब, उस पे अपने बोर्ड गाड़ दिए गवर्नमेंट ने कि हमारी प्रॉपर्टी हो गई। सरकार कुछ भी कर सकती है। आपको पता है ना, होम मिनिस्ट्री में एक होता है एनिमी प्रॉपर्टी का डिवीजन अलग से बना हुआ है। आपने इंडिया को तोड़ने की बात अगर फॉरेन लैंड से की, वो आपकी प्रॉपर्टी को एनिमी प्रॉपर्टी घोषित कर देगी सरकार। आपका घर शत्रु संपत्ति कहलाएगा। उसके बाहर ताला डाल देंगे, सीज कर देंगे। अब आप आओ तो आओ, हमारे ऑफिस में निपटो आके। इसलिए ज्यादा एंटी सोशल या एंटी नेशनल चीजों को एंटरटेन नहीं करना चाहिए, दूर रहो। सोशल मीडिया पर ऐसी पोस्ट से दूर रहिए, उस पर कमेंट मत करें, लाइक मत करें। आपको नहीं पता कब कौन कहां पर आपको ट्रेस कर रहा है। ठीक है, लिखिए। इन 2019, अच्छा ठीक है ठीक है, आई एम रिपीटिंग। एंटी सोशल इंडिविजुअल्स एंड एसोसिएशंस एंड ऑफ मैटर्स, एंटी सोशल इंडिविजुअल्स एंड एसोसिएशंस एंड ऑफ मैटर्स connected therewith, and of matters connected therewith. Stop. In 2019, therewith, in 2019, UAPA was amended to notify individuals as terrorists. UAPA was amended to notify individuals as terrorists. So stop. देखिए, the act also provide for a tribunal under the chairpersonship of a high court judge. This act also provides for a tribunal under the chairpersonship of a high court judge. नेक्स्ट पैराग्राफ लिखेंगे। अंडर द एक्ट, under the act, an unlawful activity is defined as supporting any claim for secession, supporting any claim for secession, CESSATION, secession of any Indian territory, secession
defined as supporting any claim of secession of any Indian territory or disrupting the territorial integrity of India, or disrupting the territorial integrity of India, or causing disaffection against India, territorial integrity of India or causing disaffection against India. ठीक है, तो अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में खड़े होकर के नारा लगाते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह, तो आप तो यूएपीए के हकदार हैं, फिर यू आर लायबल टू बी पनिश्ड अंडर द प्रोविजंस ऑफ यूएपीए 1967, क्योंकि भारत तेरे टुकड़े होंगे ये कहना तो एक सीधा डेंट है ओवर द इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया। आप भारत को खंड खंड करने की बात कर रहे हैं, तो आपसे यूएपीए के प्रावधानों में सख्ती से निपटा जाए, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ, डेफिनेशन ऑफ टेररिस्ट एक्ट हैज बीन expanded. Definition of terrorist act has been expanded to include offenses. Definition of terrorist act has been expanded to include offenses that threaten the country's economic security, to include the offenses that include the threaten the has been expanded to include offenses that threaten the country's economic security, full stop, procurement of weapons, comma, raising funds for terrorist activities, and counterfeiting Indian currency, counterfeiting Indian currency, COUNTER, counter, FEITING, counterfeiting इंडियन करेंसी, नकली जाली नोट छापना, ये भी एक पनिशेबल ऑफेंस है और आपको आतंकवादी मान लिया जाएगा इसमें यूएपीए के तहत अगर आप ऐसा काम करते हुए पकड़े गए। पहले बड़ा होता था घरों में नोट छाप रहे हैं बैठकर, आप किसी ने छापना जो ऐसा डिसहार्टन हुए ना 2018 में जब नोटबंदी हुई, सारे एफर्ट्स पर पानी फेर दिया एक झटके में प्रधानमंत्री ने, और उन्होंने भी बिल्कुल वही शब्द इस्तेमाल किया कि इससे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। लोगों को हार्ट अटैक आ गया, लोग मर गए, अब मर ही जाएंगे ना। मैंने आपसे क्या कहा, 40 किलो सोने की चोरी हो गई साहब, अब मर ही जाएंगे। पुलिस को क्या बताएंगे, किस मुंह से बताएंगे कि 40 किलो सोना चोरी हुआ है? आपने भी तो चोरी की ना, तब तो 40 किलो सोना आया घर में आपके, अब चोर के घर में चोरी हो गई, अब क्या किया जाए? ठीक है, वो वाली बात है। चलिए, तो आपका टेररिज्म जो है यहाँ पर खत्म हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो नेक्स्ट क्लास में रहेगा वो है कश्मीर का सेपरेटिज्म, तो हम इसको देखते हैं। ठीक है, कश्मीर में कैसे क्या हुआ था उसको करेंगे। हमारे जो टॉपिक्स हैं बेसिकली इसमें हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट कर लिया है, टेररिज्म कर लिया है, और जो पंजाब इंसर्जेंसी 1980 कर लिया है। तो अभी हमारा कश्मीर सेपरेटिज्म के साथ ही लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म और नॉर्थ ईस्ट का इंसर्जेंसी हो जाएगा, और उसके बाद फिर अलग नेचर के टॉपिक्स हम देखेंगे। ठीक है, थैंक यू, नमस्कार। सर यस, बताइए। सर यूएपीए शायद सबसे ज्यादा बार अमेंड होने वाला एक वो है, मतलब कानून है। हाँ तो सर हाँ, हम इसको ऐसे नहीं ले सकते कि ये कोई सिक्योरिटी ब्रीच है या फिर इसमें कुछ कमियां हैं। कमियां नहीं है। बेसिकली क्या होता है, देखिए कोई एक एक्ट जब बनाया जाता है ना, एक कहावत है, तू डाल डाल में पात पात। कोई इंसान या सरकार जो है उसमें जो लोग सेक्रेटरीज वगैरह बैठे हुए हैं, बेसिकली वो लोग अपने इनपुट्स देते हैं कि हमें ये काम करने हैं। ठीक है, और उसके हिसाब से हम इन इन तरीकों से देश को बचाएंगे, या यहाँ यहाँ पर प्रॉब्लम है उसको ध्यान में रखते हुए एक एक्ट तैयार किया जाता है। वो कोई भी एक्ट है, XYZ, मगर जब वो एक्ट इम्प्लीमेंट होता है
तब जब ग्राउंड जीरो पर आप उसे इम्प्लीमेंट करने चलते हैं तब आपको उसकी एक्चुअल प्रॉब्लम समझ में आती हैं कि हुआ क्या है। कल विंटर सेशन सर कल विंटर सेशन स्टार्ट हुआ। कल प्राइम मिनिस्टर जिस समय ओपनिंग रिमार्क्स वो दे रहे थे, उन्होंने मीडिया वालों से ये कहा कि अगर आप इस नई संसद भवन की जो नई जो बिल्डिंग बनी है इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नजर आती है, कहीं पर आपको लगता है हमें इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, तो आप अपने सजेशंस दे सकते हैं, क्योंकि अभी एक नया काम शुरू हुआ है। तो इसमें अभी कोई प्रॉब्लम आएगी तो वो तो समय के साथ पता चलता है। यूएपीए में क्या है कि यूएपीए जो डेफिनेशन है ना, अनलॉफुल एक्टिविटीज, ये बहुत बड़ा टर्म है। अनलॉफुल एक्टिविटी मतलब हमारे किसी भी कानून में कोई भी बुरा काम है अगर उसे अनलॉफुल बोला गया है तो अनलॉफुल एक्टिविटी तो है। तो यूएपीए का एक अपना एनेक्सर भी है और उसमें हम डील करते हैं कि भाई ये काम है, उसमें समय के साथ साथ अमेंडमेंट्स करने पड़ते हैं रिगार्डिंग दी प्रोसीजर्स, या कौन से क्राइम्स हैं या उसको कैसे डील किया जाए। अब बताइए। सर लेकिन ये मतलब फिर मतलब सिक्योरिटी को ट्रांसपेरेंट भी तो बना रहा है कि मतलब इस पे इतनी बात हो रही है। सिक्योरिटी ट्रांसपेरेंट बनाने का क्या मतलब है? मतलब मैं समझा नहीं आपकी बात। सिक्योरिटी ट्रांसपेरेंट कैसे होगी भाई? बल्कि ये तो अच्छी बात है ना कि हमारे सामने जो जो चुनौतियां आती जा रही हैं हम उनको एड्रेस कर रहे हैं थ्रू दी अमेंडमेंट्स इन दी एक्ट। अब कोई कहीं पे प्रॉब्लम आ रही है तो हम उससे निपटने के लिए हमने उसमें अमेंडमेंट कर दिया, अब आगे से वो भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तभी तो इंडियन पार्लियामेंट जो है, जैसे अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, उसे एक लिविंग डॉक्यूमेंट बोला जाता है। जब जब जो जो प्रॉब्लम सामने आई उसको हमने अमेंड कर दिया कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है। यूएपीए का भी ऐसे ही अमेंडमेंट होता है। यूएपीए इतना सेंसिटिव एक्ट है इसलिए उसमें बार बार अमेंडमेंट होते हैं, और कोई बात नहीं है। और यूएपीए ही वही एक्ट है जिससे आजकल सबसे ज्यादा घबराते भी हैं लोग। अरे इंसान को आतंकवादी का तमगा दे देता है ये एक्ट। सारा काम रोक देगी पुलिस आपका, घर भी जब्त हो गया, नौकरी भी गई और सब कुछ गया। यूएपीए लगा देते हैं, जेल में डाल देते हैं, वो अलग। ठीक है। तो ये तो एक्ट खतरनाक है ही, हर हालत में है। जैसा टाटा था, जैसा पोटा था, वैसे ही ये भी खतरनाक एक्ट है। एक एक्ट है मकोका, महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम एक्ट, मकोका, वो भी है। वो ऑर्गेनाइज क्राइम में हम देखेंगे उसको जब करेंगे। बसंत, बात समझ में आई? कोई प्रॉब्लम है तो बोलो भाई। सर क्लास के बाद। क्लास के बाद बोलेंगे, चलिए ठीक है। और किसी को कोई ऑब्जेक्शन है तो बता दीजिए। ऑल राइट। नमस्कार।